جی اللہ کا شکر ہے جناب. جی خیر مبارک خیر مبارک. حسن بھائی جلدی واپس آ جائیں، براڈ گر جائیں گے. براڈ جی آواز آئی ہے، اب آئی ہے جی. میں پوچھ رہا ہوں کس ٹاپک پہ براڈ لگی ہوئی ہے؟ ابھی تو بس ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں چاند کی. کس چیز کی؟ اچھا چاند کی. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کوئی آئے گا، کوئی موضوع چھڑے گا تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی. ویسے کون سا موضوع زیادہ آپ کو پسند ہے؟ مجھے تو لتر مارنے پسند ہیں. واہ مرزا سینئر غلام قادیانی اور مرزا جونیئر جیلمی کو اور ان کے حمایتیوں کو. واہ کیا کہنے کیا کہنے. اچھا میں ایک چھوٹا سا سوال کر سکتا اب ہوں؟ کھانے والوں کا انتظار ہے، بس وہ کب تشریف لاتے ہیں. جی میں کھانے والا ہوں. اچھا آپ ریڈی ہیں؟ جی بسم اللہ کیجیے. میں یہ پوچھ رہا تھا کسی انسان کو ہم سن سکتے ہیں، بے شک اس کی ساری چیزیں اچھی نہ ہو، کوئی چیز اس کی اچھی ہو، اس کو ہم سن سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھی ہوں بری ہوں سمجھ نہیں آئی. مطلب ایک انسان ہے وہ تبلیغ کر رہا ہے، صحیح، اگر اس کے بیچ میں 2 نمبریاں بھی آ جاتی ہیں تو اس کی اچھائیوں کو بھی بندہ بول جائے یا اس کو دفع کر دے؟ بہتر تو یہی ہے دفع ہی کر دے. جو اس کی اچھائی ہوئی جو اچھی بات بتائی ہو اس کا کیا کیا ہے؟ اچھائیاں تو یہ دیکھیں کافر بھی بیان کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں جتنے ہندو سکھ عیسائی یہودی ہیں وہ ساری گندی باتیں تو نہیں کرتے، اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ جی الحمدللہ. کیا ہو گیا؟ کلمہ سن لیں. تھوڑا سا اونچا بولیں گے تو مجھے بات سمجھ آنی ہے، ایسے نہیں. جی میں بول رہا ہوں الحمدللہ میں مسلمان ہوں. اچھا تو مسلمان کے لیے تو اس کے علماء کرام جو ہے نا یہ کافی ہیں. جب علماء کرام سارے مر جائیں گے نا تو کوئی عالم دین نہیں رہے گا، تو پھر اچھی باتیں آپ کافر سے سن لیجئے گا. اوکے وہ شاید وہ قیامت تک وہ وقت نہیں آنا. ہاں انشاءاللہ وہ تو آئے گی. اچھا میں یہ پوچھ رہا تھا، ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کسی کی جو مطلب مرتد ہو، جو کافر ہو، اس کی بات نہ سنو، جی اس کا اچھا بتایا ہوا راستہ نہ سنو. ہاں بالکل ایسا. ابھی یہ مجھے بتا دیں یہ لائٹ کون سے پیر صاحب نے ایجاد کی تھی؟ جو نیٹ جو آج کل جو ہم نیٹ یوز کر رہے ہیں، آپ کیا پتہ ادھر ابھی کون سی جگہ پہ بیٹھے ہو؟ ابھی میں کون سی جگہ پہ سب بیٹھا ہوں؟ مسلمانوں کی ایجادات ہیں یہ جتنی بھی سائنسی یہ ایجادات کون سے پیر صاحب کی ہے؟ جی کون سے بابا جی کی ہے؟ کیا لائٹ؟ مطلب ہاں یہ ایجاد کس نے کی تھی؟ لائٹ کے سپیکر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیمرہ، مطلب ٹیکنالوجی، یہ سارا کچھ کس نے ایجاد کیا تھا؟ یہ سب مسلمانوں کی ایجادات ہیں. اچھا وہ بزرگ اپنے ہی تھے؟ ہاں مسلمان لوگ. ان کا نام میں نے کبھی نہیں سنا. یہ نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ. نہیں اس کا تو ذمہ داری سے نام بتا دیں. یہ تو اس کے گھر سے بھی اس کے گھر سے دلیل دے دیں گے، مرزا انجینئر نے خود ماننا ہے. جی میں نام بتا دیتا ہوں. ایک منٹ عثمان بھائی میری بات سنیں استاد محترم. جی میں نام بتانے لگا ہوں میری آپ بات سن لیں. مسلمان بابوں کے نام بتانے لگا ہوں کہ جنہوں نے یہ ایجادات کی ہیں. اوکے آپ بتا دیں. ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ سن لیں. جی آپ اور میں بات کر رہے ہیں، بیچ میں بولیں پلیز، کوئی اور نہ بولے. اچھا بس ایک چھوٹی سی خواہش ہے. تو آپ ہی نہ بولیں. اب میں صرف آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. سن بھی تو لینا. آپ مائک میوٹ کریں. آپ کی وہ ٹک ٹک کی آپ لگتا ہے کوئی وائن وغیرہ تیار کر رہے ہیں یا کچھ اللہ ہی جانتا ہے. ٹینشن مجھے کمائی جا رہے ہیں. نہیں ہو نا
वाइन के अंदर ना गालबन पेप्सी मिक्स कर रही है, ऐसे ही है? नहीं मैं असल में रूह कौन सी अफ़ज़ा पीते मिक्स हैं कर आप? रहा हूँ। नहीं, अल्लाह माफ करे। नहीं अल्लाह को माफ पे अल्लाह करता की है, लानत हो। कादियानी और मर्दई माफ नहीं ना करते। वैसे सच्ची बता दें कौन सी पी रहे हैं? क्या चीज है? मिक्स तो बीच में चलो कोई सोडा किया होगा आपने, वाइन का नाम पूछा है। मैं पी रहा हूँ, कोई शक नहीं है, बट हलाल नहीं चीज अभी पी का रहा आप हूँ, अल्लाह पी की रहे हैं, अभी हलाल तो तैयार निकाली कर चीज। रहे हैं, अभी नुस्खा तैयार कर रहे हैं आप। देखा आपकी हंसी बता रही है कि कुछ है, एक मिनट कोई में आपको मामला बता है। दे तो मैं क्या नुस्खा तैयार कर रहा हूँ। एक मिनट रुकना, एक मिनट उस्ताद मोहतरम। हलाल चीज तो नहीं हिलाई जाती जिहड़ा ये देखें, ये मेरी आ रही है आपको, ये देखिया रूह जे अफ़ज़ा नजर आ रहा है। रेड वाइन देखिया जो ही गल निकली ना, मैं अल्लाह अकबर। वे लिया जे ये देखो, ये रेड वाइन है, ये देख लो, ये रेड वाइन है। उत्ते रूह अफ़ज़ा दा ला छड़िया जे ना लेबल और बड़े तुसी सियाने ये बड़े हो उसके यकीन है। अंदर, अच्छा सियाने बड़े हो। इसको क्या कहते हैं उस्ताद मोहतरम? ये इसका क्या नाम है जो पानी में हर mix कर- हर बुरी और चीज ये- ਦੇ ਉੱਤੇ ना तुसी इसको क्या चंगी कहते चीज का टाइटल ला देंदे हो। अच्छा चलो नहीं, अब अल्लाह माफ मैं करे। जरा आपको मुसलमान बाबों के नाम बताने लगा हूँ कि जिन्होंने ये साइंसी इजादात की। फिर माइक म्यूट कर लेना, शोर आ रहा है। हमारे पहले बाबे हैं जाबर बिन हयान, दूसरे बाबे इमाम राजी, तीसरे बाबे इमाम अल बैरूनी, चौथे बाबे हैं मसूदी, पांचवें बाबे हैं अखवानु सफ़ा। अब नंबरिंग अब आप याद करते रहिएगा, मैं सिर्फ बाबों के नाम बताने लगा हूँ। इब्नुल हैशम, अल किंदी, फराबी, अब्दुल लतीफ बगदादी, तफाशी, अल खाजनी, अल कराफी, इब्नुल अवाम, इब्नुल बेतार, अल जाहिज। ठीक है, फिर ये वो बड़े बड़े बाबे हैं कि जिन्होंने साइंसी इजादात की हैं और इल्म तबइयात फिजिक्स के ये माहिरीन थे। और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना, ज़्यादातर का ताल्लुक जो है ना वो फिजिक्स से है कि और कोई हमारे लायक। कौन सी बुक का नाम लिया, दोबारा लेना प्लीज। बुक का नाम नहीं है, बाबों का नाम अभी लिया। आपने लिया? नहीं बुक कोई बोल रहे थे, कुछ नाम बोल रहे थे। बुक का नाम मैंने अभी तक लिया ही कोई नहीं। कुछ बोल रहे थे, मैं नहीं से बुक का अच्छा, ये नाम बाबू नहीं, का जिक्र क्यों नहीं आया हमारी किताबों में? क्या मसला है? इनसे बड़ी दुश्मनी है किताबों में हमारी जिक्र है, आप मुसलमानों किताबें पढ़ते ही नहीं ना, किताबों पर तो यकीन ही नहीं तुम लोगों का। की? हम तो वो वाली किताबें पढ़ते हैं, बारे शरीयत, उसमें तो बहुत कुछ शरीयत? लिखा हुआ है जी। बारे उसमें शरीयत वुजू पढ़ते हैं का, आप? बारे जी शरीयत सर पढ़ते हैं मैं आप? पढ़ता हूँ। हाँ जी? लगा लूँ नहीं, एक बारे उसकी शरीयत पढ़ते हैं आप? पढ़ी हुई है मैंने, बता बारे देता हूँ, शरीयत अभी लगा के देता हूँ। कितने हिस्से हैं टोटल? सर मेरी बात सुन लेना, बताएं तो मैंने सही, इससे कितने थोड़ी हिस्से हैं गिनी। टोटल? मुफ्ती साहब, कितने उस्ताद हिस्से हैं मोहतरम, टोटल? मेरे जनाब मोहतरम, बात बारे तो शरीयत के सुनिए। हिस्से कितने हैं टोटल? अल्लाह अकबर, मुझे पता है आप बात करने नहीं बताएं देंगे। तो सही, झूठ क्यों बोलते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं? नहीं, मैं अभी लगा लेता हूँ बारे शरीयत नहीं, को, लगा दूँ। झूठ क्यों बोलते अभी हैं? लगा मैं देता हूँ स्क्रीन। आपका झूठ बता रहा हूँ कि कौन सा तुम झूठ? मैंने लोग बोला और मैंने तुम्हारे पढ़ा है। बाबे तुम्हें सिर्फ यही पट्टियां पढ़ाते हैं कि गप्पे मारो, कहानियां सुनाओ अगले जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहानियां आए कादी शरीफ जी हो। हाँ। ये अभी ना वो बनु उमैया के जो साइंसी खिदमतगार थे। बाबा जी ना भी वो नहीं बताया। उस्मान बात करो, इनसे बात करें। नहीं मैं नहीं, मुफ्ती मैं- साहब आपसे बात करूँ। आप करें बात सारे मोहतरम, आप करें बात। मैं आपका फैन हूँ, पता है मुझे आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है। उस्मान वैसे मैं बात इस करें, प्रोग्राम असल बैठता नहीं हूँ। में कोई इल्मी बात हो तो मैं करूं। इन्होंने ना सिर्फ अरेबिक मील जो है वो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। जो इंग्लैंड वाला मील है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है।
तो 1.8 किलोमीटर अरबी मील होता है। ये मील का लफ्ज भी अरबी से आया है, इंग्लिश में आगे माइल बन गया। बुखारी और मुस्लिम में मील का लफ्ज मौजूद है। उस जब 24,000 नॉटिकल माइल्स को अगर आप कन्वर्ट करें तो वो 40,000 किलोमीटर बनता है। और आज जो कैलकुलेशन की गई है जमीन के सरकमफ्रेंस की, वो 40,000 किलोमीटर है। यानी जमीन पर एक तरफ से चले और वापस आए तो 40,000 किलोमीटर। तो ये तमाम चीजें उस वक्त हुई, अलजेब्रा की फील्ड में तहकीकात हुई। उसके बाद तो क्रिश्चियंस ने तो वाकई इसको उरूज तक पहुंचाया, चाहे वो न्यूटन हो या केपलर हो या गलीलियो हो, ये तमाम के तमाम गॉड में बिलीव करने वाले लोग थे। तो लिहाजा साइंस के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि साइंस पूरी दुनिया के इंसानों का कॉमन मजहब है। दीन की बात नहीं कर रहा, दीन तो इस्लाम है। इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, द ओनली एक्सेप्टेबल रिलीजन इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। लेकिन स्कूल ऑफ थॉट तमाम रिलीजन्स का कॉमन जो है वो है साइंस। चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई बुद्धिस्ट है, चाहे कोई सिख है, कोई भी है, तमाम दुनिया के रिलीजन इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, उनका कॉमन जो स्कूल ऑफ थॉट है वो साइंस है, एस्टेब्लिश साइंस। बहरहाल जो मुनकरीन खुदा है, एथियस्ट, उनका ये कहना है कि ये सारी डिस्कवरीज मुनकरीन खुदा करते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। दुनिया में 90% से ज्यादा जितनी ये इजादात हुई हैं, ये डिस्कवरीज हुई हैं, या मैथमेटिक्स की फील्ड में, फिजिक्स की फील्ड में जो काम हुए हैं, ये मुसलमानों और क्रिश्चियंस के किए हुए हैं। हाँ जी। और साथ से ये भी पूछ लेना कि ये कुरान के अंदर लिखा है कि जब इंटरनेशनल हदीस में लिखा है कि मुसलमानों का जो कॉमन स्कूल ऑफ थॉट है वो साइंस है। ये भी उस्मान से सवाल लाजमी करिएगा। उस्ताद मोहतरम, मैं आपसे मुखातिब हूँ। हाँ जी, बात आ रही है उस्ताद मोहतरम? नहीं होनी चीनी, इस तो ज्यादा हल नहीं होनी चीनी, जिन्ना ही मर्जी हल कर लो, बस हो गई ओदी, बस कर दियो। एक तो सादे मोहतरम का सवाल है, ठीक है, तो एक मेरा भी सवाल साथ अटैच कर लें कि ये जो आपने एक नई चीज इजाद की है कि कॉन्डम के साथ वो हलाल हो जाता है, कॉन्डम के साथ हलाल हो जाता है, ये जो आपने एक नई इजाद की है, तो इसके ऊपर भी जरा ना दलील दे दीजिएगा। वो कहता है कि ये हराम है, तो हराम कहाँ पे लिखा है ये भी आपने बताना। कहता है कॉन्डम के साथ हलाल हो जाता है, ये भी आपने एक नई इजाद जो आपने पेश की है ना जी, आपके बाबे ने, वो नहीं, ये मुझे कोई समझ नहीं आई उस्मान भाई, ये समझ नहीं आई कि मतलब वो ये कहता है कि मतलब केले के ऊपर कॉन्डम चढ़ा के तो फिर मतलब चूपा लगा लें तो जायज हो जाएगा। ये समझ नहीं आई है मुझे उस्मान भाई, ये आपसे सवाल है मेरा। अल्लाह मैं इससे ये बता रहा था यार, नदीम भाई तुसी तो माइक म्यूट करो ना। नदीम भाई प्लीज, नदीम भाई आप उस दिन अच्छा, वो सादी मोहतरम ये कहता है कि कॉन्डम के बगैर जो है ना कौन जी शौर इसको हलाल समझेगा, यानी कि ये हराम है कॉन्डम के बगैर, लेकिन जैसे आपने कॉन्डम चढ़ा लिया तो ये हलाल हो जाएगा। तो ये जो इजाद इन्होंने की है कि नहीं, पहले तो इसके हराम होने के जरिए मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये सुनिएगा जरा। आप ना एक काम करें, एक मिनट उतनी देर वाइन तैयार कर ले, तो जरा माइक जरा थोड़ी देर म्यूट कर ले। अच्छा, वाइन होती क्या चीज है मुफ्ती साहब, वाइन होती क्या चीज है, प्लीज मुझे बता दें। चले आप तैयार तो करें ना, फिर बताते हैं। आप तैयार तो कर लें, ये सुन लेते हैं हम जरा। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है जो मैं सुनाने लगा हूं। एक मिनट, उसको इसने हलाल कैसे करार दिया, यानी कि वो क्या, एक मिनट सालिद उस्मान अली, मैं आप इसके बकौल अल्लाह की हराम करता। अच्छा मेरी बात सुन, नहीं मतलब कंडोम से क्या चीज हलाल कर रहा है, मुझे ये बता दे, मुझे ये नहीं। वो सुनेंगे तो फिर ही है ना, आप माइक म्यूट करें ना, क्या चीज मतलब हलाल। आप वाइन तैयार करते हैं, मैं आपको सुनाने लगाता हूँ कि उस्मान भाई एक मिनट, वो कॉन्डम के इस्लाम में आप सुन लें,
ओरल सेक्स का एक इश्यू मिनट डिस्कस फैजान किया बात को है। बोलने दो, एक मिनट, क्या बोल रहे थे? एक्सप्लेन करें ना, उसके बाद मुझे समझ नहीं आएगी। उसमें एक कहीं पर थोड़ा सा अगर आप एस्केप रूट किसी को दे सकते हैं तो वो ये है कि कंडोम के इस्तेमाल के साथ हो, वरना तो डायरेक्टली ज़ाहिर है इस तरह का अमल करना तो उसको कौन जी शऊर शख्स जो है वो हलाल कहेगा। भाई इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई ममानियत नहीं आई। वो एक जगह पे कह रहा है इसकी ममानियत कोई नहीं आई, फिर ये कह रहा है कि ऐसे करना कौन इसको हलाल जानने का, यानी कि ये हराम है, ममानियत भी कोई नहीं आई। तो लेकिन उसने खुद से हलाल भी करार दे दिया, जैसे आपने पकाना चढ़ाया तो हलाल है। तो जी फैजान भाई नहीं, अब मतलब आप अच्छा आप मेरी कर लें बात सुन लें, एक मिनट उस्मान भाई बात सुन लें। हाँ, ये उस्मान इजाज़त साहब, आपने कहाँ से अच्छा निकाली एक है? मिनट, अच्छा कंडम ये नाम आपका ये केला लिखा है क्या? ये समझ नहीं आ रही क्या लिखा है? हेलो, आपका नाम क्या है? अच्छा बात छोड़े, नाम नहीं तो ये छोड़िए। केला लिखा है, ये क्या लिखा है? ये समझ नहीं आई है। ये जैसे आपको दिल करे आप जी केला भाई, बात उस्मान ये भाई है मेरी कि बात एक सुने, मिनट, एक मिनट अच्छा, मुफ्ती साहब, एक बंदा भाई बात आपने करें खुद ना, कहा please। है कि जैसे आप समझ लें, तो मैंने केला समझ लिया है ना। तो हाँ, जरा एक मिनट, मैंने आपको केला कुछ भाई बोला? एक मिनट जरा रुक तो जाए ना, जरा एक मिनट। केला केला भाई पता है बड़ी जल्दी केला भाई में माइक जाता है म्यूट मुफ्ती साहब। करिएगा, केला भाई माइक म्यूट करिएगा, शोर आ रहा है आपकी वाइन का। अच्छा आपसे मैंने सिर्फ ये इतना पूछना था कि क्या इसका नाम है ये जो ओरल सेक्स है, आपने भी कभी कोई किया है कि नहीं किया, या करवाया हो? करने की आदत है या करवाने की? थोड़ा सा इसके ऊपर कोई नेरा डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये बताएं ओरल सेक्स होता क्या है? क्या आप मुझे नहीं एक्सप्लेन कर ये तो केला भाई आप ही बताएंगे। बताए ना सर, मुझे नहीं ना पता, कंडे का नहीं पता। हमें भी नहीं पता सीरियसली। जो अच्छा। झूठ बोले बड़ा बगैर हो तो मुझे नहीं पता। नहीं बता तो नहीं, ये एक ये कोंडम का इसने बोला है, ये क्या होता है? मुझे इसीलिए तो इसकी- बोल रहा हूँ ना, आप एक्सप्लेन कर दें। नहीं समझ नहीं आई हमें, तो हमें नहीं ना समझ आई केला भाई। मुझे भी तो नहीं आई ना। ओहो, आपको तो आनी चाहिए ना। देखें मिर्जा जूनियर जेल में तो आप लोगों की बड़ी तारीफें करता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो अच्छा वो अच्छा एक अच्छा मिनट केला मुफ्ती भाई साहब, एक प्लीज। सुन तो, केला अच्छा, भाई बोलने मेरी भी बात- तो नहीं ना देते अच्छा। आप, अगले बंदे की सुन भी लेते हैं। केला भाई आप तो बोले ही जा रहे हैं, तो अपनी खप डाली है आपने, अगले बंदे की सुनते ही नहीं है। अच्छा केला भाई देखें, सीधी सी बात है भाई, आपके बाबा जी ने हमारे तो कर दिए डैमेज हैज बीन डन, तो दुकानें बंद। हमारी तो हो गई हैं दुकानें बंद और डैमेज हैज बीन डन, और शाही को नहीं, हम तो शाही को नहीं। सीधी सी बात है, दो टोक। अब दीन और मजहब और ये केले शेले और ये कोंडम और चूपे शूपे, ये सब आप लोगों ने सिखाने हैं आप लोगों को, ठीक है जी। तो अब आप माइक ओपन करें और तबलीग शुरू करें, आप सिखाएं, हमें बताएं ये है क्या, क्या बला है, तो थोड़ी सी तबलीग करें जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम आउज़ु करने बिल्लाह भी वाला। पढ़ लें, अभी शैतान आज़ाद हो आउज़ गए। बिल्लाह, ओके ओके, आउज़ बिल्लाह मेरा तो कल ही आज़ाद हो गया था क्योंकि हमारी आज ईद है। आपने मुझे ईद मुबारक भी नहीं की। चलो कोई नहीं, अल्लाह खुश रखे आपको, मैंने आपको एडवांस कर दी। अच्छा छोटी सी बात ये कर ले मुफ्ती साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज तक कभी मेरे मुंह से सुना है कि इंजीनियर मेरा उस्ताद है? मुफ्ती साहब किधर चले गए हो? अल्लाह ले हो। जी मैं आपकी तबलीग सुन रहा हूँ बड़ी हाँ कोशिश मैं से। वही पूछ रहा हूँ। हाँ ये चीज यार आज बोतल कुछ बोतल मजा, पढ़ाई यार, आज बोतल कुछ से मजा आ रहा है आपसे नाल बात पापड़ करने भी, का। वैसे पापड़ भी ले जरा, मैं किसी की जरा बात सुनने का हौसला नहीं होता किसी के पास। नहीं, मैं एंजॉय करने लगा हूँ जी। मैं माइक लेज मंगवाओ, लेज लेज लेज, वही ना वही लेज लेज और कोक की बोतल मंगवाए। नहीं नहीं, ये बड़ा मजा हमने आएगा। इसका बाइकाट ठीक है, किया फिर हुआ आपने सुननी है, है, enjoy बाइकाट करें। किया हुआ है। हम गोरमे वाली पीते हैं और पापड़ पापड़ चले गवर्नमेंट पापड़ लेने। पाकिस्तानी मेड जो हाँ। चीजें है ना, हमने इसराइली चीजें, वो तो तुम माशाल्लाह, लोगों के लिए माशाल्लाह। जायज है ना। सब कुछ खाओ पियो, यशियां मारो, हाय पेप्सी भी अल्लाह। पियो और लेज भी खाओ। आपके लिए नहीं हाँ जी? जायज। तो हमारे लिए तो आपके लिए हराम है नहीं भाई जायज है। ना, बिल्कुल बाइकाट। आप अभी हलफ उठा के बोले आज तक आपने कभी नहीं पी को, हलफ उठा के बताएं मुझे
کہ آج تک آپ نے کبھی یہ کوک کو نہیں پیا، کوئی بھی اسرائیلی پروڈکٹ آج تک آپ نے نہیں کھائی؟ حلف اٹھا کے کہہ سکتے ہیں آپ؟ مفتی صاحب کدھر چلے گئے ہو میرے پیارے مفتی صاحب؟ ہیلو جی کیلا بھائی کوئی روشنی ڈالیں کہ میں یہ وہی جو تو روشنی ڈال رہا ہوں، آپ نے کونڈم کہا کیا ہوتا ہے اور اورل سیکس کیا ہوتا ہے، اور کونڈم کے ساتھ یہ جائز ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے. اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا معصومانہ مولویانہ کہ آپ نے بھی کبھی اورل سیکس کیا ہے یا کروایا ہو، تو وہ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. یا آپ کے والد صاحب نے کبھی کیا ہو، کروایا ہو، استاد جی، یا اچھا آپ استاد کی محترم والدہ ایک ماجدہ مشورہ نے دوں؟ کبھی یہ کام کیا ہو، کروایا ہو. کوئی روشنی ڈالے اس کے اوپر، تھوڑا ہمیں پتہ چلنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا، ہمارے ڈیمیج ہیز بین ڈن ہو گئے ہیں، دکانیں بند ہو گئی ہیں، ٹائم قیامت تک ہو گئے ہے. تو اب آپ کیا لوگوں چیز سے ہو ہم نے گئی؟ دین اور مذہب آپ لوگوں سے سیکھنا ہے نا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا، جی شروع ہو جائیں، اب تبلیغ شروع کر دیں. فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب ایک منٹ، میں ایک چیز مکس کر رہا ہوں، وہ مکس کر لوں، پھر میں انشاءاللہ آرام سے بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کروں گا. بس ایک اور سیکنڈ. نہ یار بعد میں تو آپ نے ٹون ہو جانا ہے. تو ابھی تو آپ نے تیار کی ہے. ویسے آپ بہت نوٹی ہو، بتائیں آپ کو اس بات کا؟ نوٹی تے چھوٹی شے وے ڈیمیج ہسبینڈ ڈن ہو جاتے، نوٹی چھوٹی رہ جاندے شے ہی کوئی. تسی یہ کیا کرو، شے ہی کوئی، شے ہی کوئی، نوٹی چھوٹی چیز ہے. اچھا صحیح ہے یار اوے اس لودھی تو کر یار کی میرے پلے پاس لے. استاد جی دھیان سے بات. کیانی صاحب کی نام کی تہاڈا؟ کیانی صاحب، کیانی صاحب میں تو پریشان ہاں کہ کیڑا روح افزا ہے جنوں ادھا گھنٹہ ہو گیا ہلی جا رہا ہے. بھائی ابھی پتہ ہے ابھی میں کیا، اچھا بات سنو، ابھی پتہ ہے میں کیا مکس کر رہا ہوں؟ نہیں یہ کون سی ٹونک وائن کی نئی قسم ہے یہ؟ جیلم اکیڈمی کی بات تو پروڈکٹ سن لینا، اگلے بندے کی بھی تو سن لیا کریں. جی بتائیں یہ کون سی پروڈکٹ ہے؟ کھیر ڈالی ہے. کھیر کا پتہ ہے آپ کی زبان میں کھیر کیا ڈالی ہے؟ بولتے ہیں؟ استغفر اللہ. اور یار نام کیا نام رکھ دیے تم لوگوں نے. بتا دینا کیا جیلم نام ہے، اس اکیڈمی لیے کے میں نے بولا. میرے خیال سے جیلم اکیڈمی کے سارے آپ نے وہ کنڈوم کٹھے کر کے لائے ہیں، اس میں سے نکال کے آپ نے کوئی حرکت کر رہے ہیں. نہ اس طرح کی حرکتیں کریں، دیکھیں مر جاؤ گے، نہ کرو مرضیو، شرم کرو، کوئی یاد کرو. صرف 2 منٹ کا ٹائم دے دو، صرف 2 منٹ بعد کی ٹھلا ہو جائے گا. 2 منٹ بعد کی ہوئے گا پھڑک کے مر جانا ہے کی ہونا کی یہ 2 منٹ بعد مرضی گی. ابھی میں نے ریڈی کر لیا، ابھی میں اپنے استاد محترم سے بیٹھ کے بات کرتا ہوں. کیمرہ آن کریں گا، کیمرہ آن کر کے استاد محترم سے بات کریں گا. کیمرہ آن کر دیتے، اس میں کون سا ہے؟ ہاں تاکہ نا ہمیں پتہ چلے. آپ منہ شریف اپنی طرف کریں. وہ بھی کر لیں گے، اس میں کون سی. یہ کس نے کھانی ہے میرے بھائی نے، جس نے روح افزا کھیر پاک کھا رہے ہو؟ وہ پی لیا، اس کے بعد دل کیا یہ کھانے کا. اچھا اس کے بعد دل کی نہیں وائن دے نال میٹھا ہے کھاندے جے، او زیادہ چڑھدی زیادہ چڑھدی یہ چیز. تسی نال نمکو کھاندے ہو کہ نال تسی کھیر کھاندے ہو؟ کھیر کھا رہے ہو. میں بادام. اچھا کیمرہ اپنی طرف بھی کرے نا، اپنا بھی ذرا منوس چہرہ دکھائیں عوام کو. اللہ نہ کرے. دکھائیں تو صحیح، کچھ نہیں ہوتا. وہ لتاں پا لی ہیں. تاجی ڈیگ پہ آ جائے، تاجی ڈیگ پہ آ، یقین کرو ڈیگ پہ آ جائے. وہ لتاں انہیں لمیاں پا لی ہیں انہیں. وہ پھڑو مرزئی نو چھری پھیر دیو. کام پٹھے شروع کرتے لٹن لا پیا جی، لٹن لا پیا جی، کھوتا نہیں لٹتا. یہ وہ حالت ہو گئی. اچھا استاد محترم ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، پلیز آپ سن لیں. اچھا بتائیں نا، یہ جو مرزا انجینئر کرتا ہے کہ کنڈم کرتا کوئی رولا نہیں.
enjoy करो और क्या नाम है आपका? तमानिया लोधी। हाँ जी यही है। भाई आप मुझे तो मुझे मिर्ज़ा बताएं क्यों ना। कहते हैं, प्लीज ये बता दें। अच्छा मुझे ये बताएं, नहीं, इंजीनियर एक साहब सवाल बंदे- कर रहा हूँ, फिर ये आगे oral बात sex कर को रहे हैं कोई जमानत ना। नहीं है। एक मिनट भाई प्लीज। एक ही टॉपिक पे रहेंगे, एक ही टॉपिक पे, जिस तरह आप कहें एक ही टॉपिक पे। हाँ, मैं साहब कहते हैं इस्लाह के लिए, oral आप sex इधर की कोई इस्लाह के लिए जमानत नहीं बैठे है। ना, मेरी बात जी सुन वही लें। मैं आप कह रहा इस्लाह हूँ, के लिए इस्लाह बैठे लिए ना। कह रहा हूँ। वही पूछ रहा हूँ, इस्लाह आपसे मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपने कैसे मुझे जज कर लिया मैंने कि एक मैं मिर्ज़ा करता हूँ, एक इंजीनियर आप का कर स्टूडेंट लीजिएगा, हूँ? ठीक है? यार केला भाई, हमने आपकी करतूतों से आपको जज किया है। मैंने क्या ऐसी करतूत की है? ने करतूतों से जज किया है। वो ना बाबा जी के पास हम बैठे हुए थे, तो जब मैं जाने लगा ना, तो बाबा जी ने कहा पुत्र जी, शाह जी ते मुफ्ती साहब हरामियां को बच के रहे ही। तो मैंने हाय बाबा हाय। जी से अर्ज किया, बाबा जी हरामियां को तो तद बचांगा कि जे मैनू पता है कि हरामी कौन है, ते हरामी दी कोई अलामत ही दस दियो जी ताकि जी ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਹਰਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਧੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਲੇ ਰਹੋ। क्या नहीं साहब बताएं ना, थोड़ी इंजीनियर नस्वार थोड़ी ये सी जो कट के गल करया करो मुफ्ती साहब। वही मैं कह रहा हूँ ना, बात सुने मेरी। क्या नहीं साहब जी बात जी, है, मैं देखें, आपका अब मैं इल्मी गुफ्तगू करने के आदी, ठीक है ना। हमारे साथ हाँ। आपने इल्मी किताबी गुफ्तगू करनी है। मिर्जा साहब कहते हैं ओरल सेक्स की कोई भाई मैं ममानत नहीं है। आपसे सीखने आया हूँ प्यारे भाई, आप मुझे आगे नहीं ये काम हमें नहीं ना आता, ये आपको सिखाना पड़ेगा। आप इस्लाम हमारे के मजहब में लिए ये आए नहीं हैं ना ना। है। क्या वो है सर जी आपके हमारे मजहब में ये मैं नहीं ना है, मुसलमान ये हूँ। पढ़ गया ना यहाँ। अच्छा मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह माफ करे, मैं कोई कद्यानी काफिर मैं थोड़ी आपको हूँ जो कौन आप- से कुछ कह रहा हूँ सर, मैं तो अच्छा फिर आप आप ठीक हो गया। आपका और मेरा मजहब अलग है। नहीं आप मुझे ये बताएं कि मिर्जा आपने इंजीनियर बोला साहब ना जो हमारे कर रहे मजहब में हैं, इंजीनियर, यार ओरल सेक्स नहीं इंजीनियर ना है जाए यार। बहार में, यार बात सुनो, इंजीनियर जाए बहार में, ठीक है भाई बहाड़ सुनो। में जाए ये बहाड़ बहार में जाए, जिधर में जाए, मुझे उससे ये क्या बहाड़ लेना देना मेरे भाई। ਉਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾੜ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? अच्छा ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? पहाड़ भी जाए ਓਏ इधर ਲੋਧੀ, भी ਸਮਝ जाए। ਆਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਮਰ ਜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ साहब जी ਕੇ जेलम अरबी अकेडमी दी सीखदा डिक्शनरी है। मैं उस्ताद कसम जी उठा जेलम के कह अकेडमी सकता हूँ, अकेडमी दी डिक्शनरी है। मैं आज तक ਉਹਦੇ जेलम ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ नहीं ਨਵੇਂ गया। ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। जेलम अकेडमी ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਰਾਮਕੋਟ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਬਹਾੜ ਕੱਟੇ। ਬਣਾਇਆ, ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਚੜੇ। उस्ताद मोहतरम पानी पी ले, ये ना हो आपको कुछ हो जाए। अच्छा चलें बताएं ना, आप छोड़ें इंजीनियर को भी, आप मुझे बताएं ओरल सेक्स की मानत है या नहीं? यार मुझे पता ही नहीं ओरल सेक्स होती क्या। बस भी ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे मिलती जुलती होती है। मतलब मैं अभी ये खाना खा रहा हूँ लाल चीज, इसको ओरल नहीं सेक्स आपने कहते जो ये नहीं ये जो आपने टांगे सीधी की ना आपने, और शलवार भी हाँ। सीधी की है, हैं? हाँ, इससे मिलती जुलती आइटम। ऐसे करके तो आप पैदा हुए हो, पता है आपको इस बात का? अच्छा आपको पता है इसका आप मतलब इसके बगैर ओरल आए हो। सेक्स क्या होता है? आपको पता है ओरल सेक्स क्या होता है? आप झूठ बोल रहे थे। नहीं आपने कहा टांगे ऐसे करके तो वैसे करके, मैं हाँ, कहा तो ऐसे oral sex करके तो position आप बना आए रहे थे हो ना। दुनिया में। ओरल सेक्स पोजीशन बना रहे थे ना, मैं वही कह रहा हूँ। तो इसकी कोई ममानत है या नहीं है? मैं आपसे ये सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। और भाई ममानियत नहीं है, वो पूछे तरीका, वो पूछे ममानियत नहीं है, वो तो ये मानते हैं। अच्छा यार पूछे मेरी कि- बात सुनो, मुझे ये बता दो, जब तक मुझे सही पता नहीं होगा ओरल सेक्स होता क्या, मैं वैसे क्या ये बोलूं? ना, ये मुझसे क्यों नहीं बात करता है, इसे पता है। और इनकी सारी करतूतें उस्मान भाई आप आ जाओ, आप आ जाओ, एक मिनट। इनकी सारे तमन्या करतूतों बाटक का भी आप चुप पता हो है। जाओ। लोधी भाई को आप नहीं, तरीका नहीं। बताएं फिर। आप नहीं तमन्या बाटा मैं एक अपने भी- घर बीच नहीं में बोलना। अपने घर में आपने ये तबलीग कर दी है। जैसे वो मिर्जा इंजीनियर कहता है कि भाई अपने घर में जो ना, वो बता दो कि बच्ची जब 12 साल 10 साल की हो जाए ना, तो उसको आपने पैड भी देने हैं, तो उसको सेक्स एजुकेशन भी सिखानी है। तो ये वाली चीज फिर आपने ये तबलीग अपने घर पहुंचाई है कि नहीं? जल्दी भाई ये पूछें जरा, और कैसे पहुंचाई है, क्या है तरीका, ये सारा पूछें।
उस्मान भाई बात सुने भाई, माशाल्लाह मेरे भाई की कितनी एज है? उस्मान भाई से पूछ रहा हूँ। उस्मान भाई की है कोई जनाब T20। यार फिर वही बात है। नहीं वो नहीं, वो उनके हाँ मिनी गॉड का तस्वर नहीं है, वो 60 साल की ज़िंदगी उनके पास नहीं है इस तरह की। नहीं वैसे उनकी एज कितनी है? एज उनकी है 30 साल। माशाल्लाह इनके घर एक बेटी भी होगी। नहीं इस वक्त बात हो रही है मिर्जा इंजीनियर साहब की बेटी की, देखें उन्होंने जिक्र वही तो किया जवाब दे रहा हूँ ना, मैं पब्लिक के जवाब आगे। दे रहा हूँ। पूरी पब्लिक के जवाब आगे दे जनाब उन्होंने जिक्र किया अपनी बेटी का, किसी और ने जिक्र तो किया। आप कैसे जवाब दे रहे हैं किसी और के ऊपर? सर मैं जवाब दे रहा हूँ ना, एक बात सुने क्यानी साहब, मैं आपका पर्सनल सूल नहीं निकल जा रहा है। रहा लोधी, मैं पर्सनल नहीं जा रहा। आपको जो बात हम कह रहे हैं ना, वो मिर्जा जूनियर मंगोल छोकरे ने अपनी एक वीडियो बनाई, उसके अंदर उसने अपनी जो बेटी का पूरा जिक्र किया कि पहली दफा उसको जब मैसेज आए तो बड़ा रोला पड़ गया था। वो वीडियो इनको सुनाते हैं। पहले अभी जो ओरल सेक्स वाली बात सुनाई है ना, तो जी भाई वो वाला पूछें कि ये फिर कैसे आप साजी वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा था इनको, मैं भाई इस हवाले से प्लीज आप किसी और के ऊपर तब बात करें जब किसी और ने अपने अपने किसी फैमिली का जिक्र किया हो। मेरी बात सुने क्यानी साहब, सॉरी जब किसी ने फैमिली का जिक्र किया हो ना, तो फिर आप उसकी फैमिली का जिक्र करें। मिर्जा इंजीनियर मंगोल छोकरे ने पूरी पब्लिकली अपनी फैमिली का जिक्र किया है, उसको लाखों लोगों ने व्यू किया है, उसको देखा है, उसमें उसने बकायदा अपनी बेटी का जिक्र किया है। समझ आई ना? आई वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। क्या करना है जी, मैं क्या करूं मुझे बताएं। ओरल सेक्स की कोई मान्यता है या नहीं? ओरल सेक्स की कोई मान्यता है या नहीं? जब तक मुझे उसका मतलब ही नहीं पता तब तक मैं कैसे बोलूं? जब मुझे मतलब पता लगेगा मैं बोल दूं। आप भी तो पूछे करेंगे शादी के बाद। इनसे पूछे लोधी भाई कि कॉन्डम से आप क्या समझे? कॉन्डम क्या चीज होती है? ये भी नहीं पता होगा। कॉन्डम से हलाल हो जाता है। कॉन्डम से ये कंडम से क्या हलाल हराम होना? उससे तो बाहर ही नहीं निकलना, उससे क्या हलाल हराम होना है? मुझे ये बता दें भाई। वही कह रहा हूँ ना, मिर्जा इंजीनियर साहब कहते हैं कि अगर कंडम चढ़ा के अगर आप करते हैं ना ओरल सेक्स, तो फिर कहता कोई मसला नहीं है, कोई मेडिकली उस पर ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती इंसान को। इस बात से तो आप मुतफिक हैं कि नहीं? हाँ जी। अच्छा केला भाई एक मेरा भी सवाल है बीच में कि ये ओरल सेक्स करना अफसल है कि करवाना अफसल है? उस्ताद मोहतरम एक छोटी सी बात करूं। सिर्फ मुझे 5 से 7 बात सुन लेना। पहले भी आप टाइम ले लिया, फिर टाइम लिया। बात तो सुन लेना सर। अजान हो रही है, मैं इतनी देर में अजान सुन रहा हूँ, आप किसी और से बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ। तो तकलीफ होती है अजान से, तो मर्जियों को तकलीफ होती है, आप क्यों सुन रहे हैं? आप कहें भाई कि ये अजाने मगरब की अजान है अल्लाह के बंदे। मर्जियों ने कि अजान से तकलीफ होती है। आप, मुझे लगता है कि आप ना पता करने गए हैं, जैसे वो मिर्जाई चले जाते हैं ना पता करने अपनी अम्मियों से कि जी वो आप बताएं माजी के कितने शोहरों की आपको ख्वाहिश है। मुझे लगता है आप वो तरीका पूछने जा रहे हैं। देखें आप पर्सनल हो रहे हैं, जब मैं होता हूँ फिर आपको तकलीफ होती है। नहीं भाई, हमने तो वो बात जो वीडियो के अंदर है, वीडियो से हट के हमने बात नहीं की। मुंह पे करो ना जो बंदा बोल। अब आप पूछने जा रहे हैं, आप नकल मारने जा रहे हैं। अच्छा एक छोटा सा सवाल करूंगा, बर हो हमारे, तो वो हमारा सवाल किधर गया भाई? आपको इसी का जवाब दे रहा हूँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ। कल को हम यानी अब आपको पता चल गया है, अब आपको पता चल गया है कि ओरल सेक्स क्या होता है। उस बारे में बात ही नहीं कर रहा ना, उसका तो मैं जवाब ही नहीं दे रहा ना। तो सवाल तो उस पे हुआ, तो आपने कहा मैं जवाब देने लगा हूँ। अब आप आपने न्यू टॉपिक ओपन किया, वो जो कह रहे हैं कि ये टुन हो गया है, ये टुन हो गया जी, ये अब इसको चढ़ गई है, एक बार अब इसको चढ़ गई है। कहता है मैं जवाब देने लगा हूँ, तो मैंने कहा पता चल गया ओरल सेक्स क्या होता है? कहता नहीं मैं उस पर तो जवाब ही नहीं दे रहा। भाई अभी आपने न्यू टॉपिक ऑन किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं न्यू पहले वाला तो छेड़ दो ना। मैंने वो मेरी एक की जवाब है, जब तक मुझे फुल पता नहीं लगेगा ओरल सेक्स होता क्या। ये देखो ना, अच्छा
केला भाई, एक मिनट मुझे ऐलान करना है मैंने आए अच्छा जी, आए ये अल्लाह जी। चांद नजर आ गया है तमाम कादियानियों और मर्जियों, मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी और मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोअर को छोड़ के तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक हो जी। ये ऐलान करना था जी। अब आप डिबेट जारी रखें। चांद नजर आ गया मुफ्ती साहब? जी जी, मुसलमानों का कल ईद है मुसलमानों की। वैसे एक छोटा सा मासूमाना सवाल करूंगा आपसे, आप मुझे मुसलमान समझते हैं या क्या समझते हैं? जो भी मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी या मिर्जा जूनियर जेलमी का उस पे मैं लानत भेजता हूँ, फॉलोअर उस है पे मैं लानत भेजता और हूँ। फॉलोअर है और इनको काफर नहीं मानता, तो गुलाम हम उसको काफर कादियानी मानते हैं। काना काफिर है। जो मिर्जा जूनियर जेलमी को काफर नहीं मानता, हम उसको काफर मानते हैं जी। जवाब मिल गया। और मैं इस केला को जो क्यानी नाम से आई थी, मैं इसको खंजीर से भी बदतर मानता हूँ, काफर। ये मिनी गोड का दिफा कर रहा था, पूरा पूरा मिनी गोड का दिफा कर रहे थे ये लोग। मैं खुद इसको खंजीर से बदतर मानता हूँ। मुझे भाई आप खंजीर से बदतर मानते? यार एक बात बोलूं आपको, आप इधर इस्लाह के लिए बैठे तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना इखलाक अच्छा कर लो। जिस हिसाब से नहीं, आप देखिए, मेरी बात सुन लेना, आप पूरी जब बात आए तो करने थे नहीं तो देते। आपने ये सवाल उस वक्त भी किया था, हम अखलाक खलूक के लिए नहीं बैठे, तो हम कोई तबलीग करने के लिए नहीं बैठे। आपने सवाल किया था, मैंने बताया था हम मंजी ठोकने के लिए बैठे हैं। मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी, मिर्जा जूनियर जेलमी और उनके फॉलोअर्स की सिर्फ मंजी ठोकने के लिए, और कोई अखलाक खलूक, कोई तबलीग, कोई इस्लाह, ये अच्छा, वो अच्छा। हमारा मकसद नहीं है। फकत ओनली मंजी ठोकू बस। बस आप थोड़ी सी एक काम करें, नस्वार डालना कम कर दें। आपकी वॉइस बहुत प्यारी है। हाँ जी उस्मान भाई, अभी आप आ जाओ, आप क्या कहना चाहते थे? अच्छा, फिर वो जो ओरल सेक्स का आप बता देंगे? जब तक मुझे उसका मतलब नहीं पता होगा मैं कैसे फतवा दूं यार, मुझे ये बताओ। वो आप खुल के चले बात मैं- करो ना। हाँ अच्छा, खुल के मैं खुल बात के करो। बात करता हूँ, खुल के हाँ बात ये करता हूँ। ठीक चीज़ आई है मज़ा। अगर कोई नीचे कोई सिस्टर वगैरह कोई बैठी हैं तो वो चली जाएं। हाँ वो चली जाइए, खुल के बात करेंगे। मरज़इयों की जो सिस्टरें हैं वो नेड़े नेड़े हो जाएं। मरज़इयों की सही जो है। सिस्टरें हैं वो तबलीग ले लें। हाँ बिल्कुल। यानी साहब अपना घर में भी किसी जी को साहब। कहना है वो कह दें, वो पास आ जाएं। तबलीग बहुत अहम है, याद रखना, किसी की फैमिली को टारगेट जो करता है ना, तबलीग उसकी बहुत अपनी अहम फैमिली है होती है। भाई। मैंने ये नहीं याद कहा रखना। वो, भाई ये मैंने नहीं कहा, आपके बाबा जी ने कहा है कि मैं तो इनके लिए एक सेक्स एजुकेशन वाली वीडियो भी बनाऊंगा ताकि ये सारे दिखा दें। तो आपने यार मैं स्टार्ट से अभी तक यही कह हाँ, चाह रहा हूँ, मैं मैंने वो किस दिन आके बोला है मेरा मिर्जा मैं इंजीनियर बताता हूँ। उस्ताद है। आप क्यों किसी पे तोहमत लगा लेते हो? कब मैंने ठीक है, बोला? कोई ठीक। ऐसा प्रूफ बता दो। मुफ्ती मुबशर साहब, आप अच्छा, अब मैं इधर ऐलान कर रहा हूँ। मैं एक मिनट, छोटी बात सुन लो, छोटी सी बात सुन लो। अब मैं नहीं इधर ऐलान सुनेगा कर रहा हूँ, 17 बंदे हैं, मैं सुनूंगा, मेरे में हौसला है सुनने का, आप सुन लें। इधर 17 बंदे बैठे हैं, कोई एक ऐसा बंदा बता दे कभी भी मैंने ये बोला हो कि मिर्ज़ा इंजीनियर मेरा उस्ताद है। कोई बता दे इधर, मैं आपके सामने जो है इधर जो बोलोगे वो करूँगा। तो आप क्यों किसी को, कोई भी आता है आप उसको मिर्ज़ा ही बना देते हो यार। अच्छे भले बंदे को आप मिर्ज़ा ही बना देते हो, गलत बात है ना। पहले उस बंदे से पूछो आपका क्या कीदा, आप किसके मानने वाले हो। अभी मैं आया हूँ, आपने उसकी कहानी स्टार्ट की। मैं स्टार्ट में बोलूँ, मैंने किस भाई को बोला है कि यार उसका नाम क्या है, मैं क्या कहते हैं, मैं मिर्ज़ा इंजीनियर का वो स्टूडेंट हूँ, मैं उसको दिफा करने आया हूँ। अच्छा चले फिर डाल दें, आप भी हमारे साथ खड़े हो जाएं। तो आप भी मिर्जा जूनियर जेलमी को काफर क्या मानते हैं कि नहीं मानते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक मिर्जा सल्लल्लाहु जूनियर जेलमी अलैहि को आप वसल्लम काफर की मानते? तकरीर हदीस नहीं, बता रहा हूँ ना, वो हदीस तकरीर बता रहा हूँ ना नहीं, मैं। एक सेकंड नहीं लगता। काफर मानते हैं कि नहीं? मिर्जा गुलाम, मिर्जा जूनियर गुलाम नहीं, नाम बताए ना जी। मिर्जा हाँ। जूनियर जेलमी।
नहीं उसको मैं काफिर नहीं इंजीनियर मान सकता, मोहम्मद मैं नहीं कह मिर्जा सकता, मोहम्मद अली जेलमी को आप काफर मैं मानते हैं उसको कि काफिर नहीं? नहीं हैं? नहीं मानता, नहीं मानते तो फिर असि तो काफर मानने हैं बस। मन शक्का फी सही है। कुफर ही फकत कफर, जो काफिर के कुफर में शक करे वो खुद काफिर होता है। ये थी वजह, जवाब मिल गया। हाँ, अब करें अच्छा, उस्मान से बात करें। अच्छा, और जो किसी पे झूठ, ये देखना, अच्छा ये सुन तो लेना, ये देख जरा, ये सुन, ये है, हाँ पता लगा है अब, ये है एक मरजई तू है, एक तैयब मरजई है, समझे बात है, और वो बाबा आसम मरजई, ये तू और बाबा आसम मरजई दोनों लगे हुए हैं। अब ये सुन के देख के क्या लगा तुझे? और सेक्स का कुछ पता लानत चला? हो, लानत हो इन पे हो यार, मैं तो लानत भेजता हूँ जो इस तरह की हाँ, बातें तो अब करते हैं। मिर्जा इंजीनियर पे, हाँ लानत भेजते हो मिर्जा इंजीनियर? मिर्जा इंजीनियर ने, अच्छा मिर्जा इंजीनियर ने कब बोला है कि इसको कहते हैं ओरल सेक्स? हाँ ये देखना जरा, ये कोंडम तूने नहीं, अपनी, इस चीज को बोला ये उसने। सुन तो लेना, कोंडम तूने अपनी ये जो चड्डों में लेना है, ये सुनना जरा, ये जब आप ये अपनी बाजी को साथ बुला लें, अपनी बाजी को साथ देखिए, बुला लें, वो सुनने, क्योंकि ये कहता है कि मेरी तबलीग पर्सनल जो है ना, अटैक नहीं करते वो मेरे सबको भाई, पहुंचनी आपके चाहिए। घर, सुन ले, ओरल सेक्स आपके घर भी बाजी होगी भाई, ज़ाहिर है ये भी एक क्यों कर रहे हो बुराई है यार? जो मुआशरे में आ रही है। उसमें एक सुनने कहीं का पर हौसला थोड़ा सा अगर रखो। आप एस्केप रूट किसी को दे सकते हैं तो वो ये कि कंडोम के इस्तेमाल के साथ हो, वरना तो डायरेक्टली ज़ाहिर है इस तरह का अमल करना तो उसको कौन ज़ी शऊर शख्स। अच्छा मरजई, कोंडम जो है वो तुम्हारी बाजी ने जो है वो हाथ पे चढ़ाना है अपने मियाँ के, भाई मेरी बात सुनो, या कोंडम तेरी सुनने जो का बेटी हौसला है, रखो, बात तो सुन लो ये ना, देख लो, या तेरी बेटी ने अपनी नासों में लेना है कोंडम, ये गलत कर रहे हो, पता है? तो अब आप बताएं, अब आपको पता चल ये आप गया गलत ओरल कर रहे हो सेक्स? भाई, हाँ आप गलत। वो हालांकि बता भी दिया है कि चूपा जब आप लगाएंगे ना, आप लगवाएंगे किसी मरजई मुफ्ती से, आसम बाबा या चौधरी मुफ्ती तैयब से साहब, चूपा, या चौधरी तैयब आपका चूपा लगाएगी। चौधरी मुफ्ती तैयब जब साहब, आपका वो चौधरी तैयब मरजैन जो है ना, वो तैयब वो आपका जब चूपा लगाएगा ना, हाँ बात सुनो, अब ऐसे नहीं, और आसम बाबा तेरा चूपा जब लगाएगा या वो तू उसका लगाएगा, तो पता चल जाएगा तुझे कि कॉन्डम के साथ क्या होता है। मरजैया कर ली ये बात आपने, अब ना मरजई को बात नहीं मिल रही, ये बात मेरी भी तो सुन लो ना। अब नहीं, अब गूगल हाफिजुल्लाह ताला जो ना, उसके पास भी जब नहीं जाना है, वो कहता है कि फैसला गूगल से करवाना है मेरे हकचार यार से, क्योंकि कहता है मेरे हकचार यार जो है ना, वो 4 चैनल भी हैं और ये सोशल मीडिया वाले भी हैं। ये मैं लिखने अगला लगा हूँ, बंदा कुछ बोले वो, व्हाट इज ओरल भाई सेक्स, मेरी बात सुन लो मरजइयों का, प्लीज, ये सुन मेरी लो। बात सुन लो। नहीं अच्छा, ऐसे नहीं, ये तैयब मरजई जो है ना, वो उस्मान भाई इंतजार कर प्लीज रहा है, ऐसे नहीं करो, वो तैयब मरजई इंतजार कर रहा है, तो उसका चूपा लगाना है जाके। ये देखो व्हाट इज ओरल सेक्स मैंने लिखा है, मुफ्ती मुबशर क्या, तो मरजइयों, यार मुझे बात तो करने दो, ये जी ओरल बात सेक्स है, करने ओरल दो। सेक्स क्या होता है? मरजई सुन रहा हुन, तू सन पूछ रहा उदों दा ओरल सेक्स की है, ओरल सेक्स की है, मैं समझ गया हूँ, पूछ रहे मैं जवाब नहीं अभी नहीं, जवाब दे रहा हूँ ना। अभी नहीं मरजैया, पहले चुप करके सुन ली। ओरल सेक्स होता क्या है? नहीं अभी नहीं, ऐसे नहीं, इसको म्यूट करो जरा, ये मरजइयो, ये पढ़ना जरा, ये गूगल हाफिजुल्लाह ताला ये क्या कह रहा है, कहता है फैसला गूगल से करवाना है, मौलवियों की बात नहीं माननी, आपने मेरी बात नहीं माननी। ये देख लो, चलो पहले तस्वीर दिखा देता हूँ, ये लो, ये है जी, ओरल सेक्स समटाइम्स रेफर्ड टू एज ए ओरल इंटरकोर्स is sexual activity involving in the stimulation of genitalia of a person by another person using the mouth। तैयब अपने मुंह से तेरा डालेगा और बाबा आसम तेरा वो डालेगा तेरा मुंह में, या तू उनका डालेगा मुंह में। अब समझ आ गई है? जी, इसको कहते हैं ओरल सेक्स, आ गई है। अब बताओ, अच्छा अब बताओ, वो कहता है कि कॉन्डम के साथ ये बिल्कुल हलाल है और इसकी इस्लाम में कोई ममानियत नहीं आई, और बगैर कॉन्डम के हराम है। जी मरज़ई ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकबर भाई को ऊपर ले आओ, मुकबर भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पुराना दोस्त है, इसको ऊपर ले लो।
नहीं, अच्छा मुखबर ने भी बताया कि दिया आप तो कि बड़े हाँ बड़े मरज़ई हैं। मुखबर ने इतला दे दी है कि तो आप बहुत बड़े कंजर हैं सर, उसने लिखा हुआ है। ओके 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 सर ओके। नहीं अच्छा लोधी मेरी भाई, बात ऐसे नहीं, सुनो। ऐसे नहीं। अच्छा हाँ जी, उस्मान जी भाई, मरज़ई। अगर ओरल सेक्स का ये मतलब है, अगर इंजीनियर ने बोला है उस पे भेजते हैं लानत, ठीक हो गया, खुश? नहीं, ठीक अगर है, मगर मैं नहीं करना। हाँ मरज़ई उसने कहता अगर है और मिर्जा, वो नहीं, अगर मगर तो करनी नहीं ना। अगर जी की जी अगर ये कहता है वो, ये क्या उसने कहा है कि अगर मगर हम्म, शैतान का रास्ता खोल देता है तो तुमने हाँ इसको चेकआउट नहीं अगर किया। उसने कहा, चलो अब चलो ठीक है, अगर उसने कहा उस पे अल्लाह की लानत हो गई, ठीक है, नहीं, अगर वाली जवाब मिल बात नहीं गया। है। कहो अच्छा मिर्जा जी उसने ने कहा ये तो उस कहा पर अल्लाह है। की लानत, नहीं, चलो उसने अगर कहा उसने उसके, फिर क्या। अगर नहीं, कहो मैंने क्या मिर्जा किया, जीनियर मैंने के कहा उसने, ऊपर लख दी लानत। कहो मिर्जा जीनियर खंजीर के ऊपर लख दी लानत। वे यही अच्छा फैला रहा चलो है। लाख दी और लानत मिर्जा इंजीनियर पे। अच्छा मेरी बात सुन लो, बात खत्म हो गई, अब मेरा एक नहीं, किस सवाल बात। करने दो। ओके हाँ, लानत बात डाल दी सुन है। लो, हाँ लानत हाँ डाल दी बात है। सुन लो, जी जी चल डाल दिया, ठीक अब है, बात सुन लो। रिकॉर्डिंग हो गई है, रिकॉर्डिंग हो गई है, ये रिकॉर्डिंग जो ना चढ़ जाएगी, नहीं अपलोड हो काफर ही जाएगी। कवाना सी ना उस्ताद जी, काफर ते कवाओ ना, ओ गल ओ ते ओ काफर ते काफर आके भी रुकी। कवाने, गल सुनो, काफर भी कवाने आ। पहले गल ते लानत पै गई है जे हुन आज हुन ਇਹਦੇ कुफर ते भी, क्योंकि आज मरज़इयां ने तबलीग करनी है सानू। अपनी तबलीग आप ही करके लानत पा रहे हैं। अच्छा अब मेरा एक सवाल कर लूँ आपसे, अब मैं आपका एक सवाल पूरा हो गया, नहीं मरज़इया जी, डैमेज तो अभी मुझे भी तो हो गया करने है। दो ना, ये आपने कहा गलत बात डैमेज है हैज ना। बीन डन। अच्छा ये गलत नहीं नहीं बात है, अब मरज़इया, इधर आपने एक सवाल, हम बैठे मैं हैं। एक हम बैठे हैं मंजी ठोकने के लिए, सवाल लेने के लिए नहीं। मंजी नहीं आपके नहीं ठोकने ये के लिए बैठे जास्ती है, हैं। ये याद रखना, ये चले जी, अगले आप बंदे की आप बताएं। बात सुने, अगले अब मरज़ई एक जी सवाल मेरा बताएं होगा एक आपका, कि एक मिर्जा मेरा होगा जीनियर एक आपका, मैं के सारे ऊपर जवाब दे आपने रहा हूँ ना, एक उसकी मिनट बेहयाई पे लानत डाल दी। ठीक अब है आ जाए मेरी जी बात मिनी खुदा सुने, के ऊपर। मुफ्ती आप मिनी मुबशर खुदा के साहब ये कीते के देख लें, ऊपर ये अब काफर मुशरक सुनने का मानते हैं। हौसला नहीं है इधर, सुनने का नहीं हौसला ना, नहीं है, ये याद रखें। मुफ्ती मैं साहब ने जवाब पहले दे, बता दिया कि हम मंजी ठोकने के लिए बैठे हैं। हाँ मैं एक एक सवाल मेरा भी तो तो हक तुम बनता अपनी है ना, मंजी ठुकवाओ बस हमसे। मैं एक हम सवाल मेरा हम भी तो करना बनता है हमने ना कहा था, उस्मान भाई, ये गलत, मैं एक आपने खुद इकरार किया कि छितर मुझे मारो। आपने खुद इकरार किया मैं एक आया हूँ सवाल छितर मेरा खाने। बनना पड़ता है, तो अब आप नहीं, एक सवाल सिर्फ अब आप करूंगा, एक किसी सवाल, भी सूरत, किसी जन्नत भी के सूरत बारे, देखिए ना आप चले जन्नत के बारे में भी में करते हैं। सवाब है, हाँ एक मिनट, जन्नत के बारे में सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, जन्नत पहले के वो बारे जन्नत में, का तारुफ तो ले लो, हाँ जन्नत का तारुफ तो मैं कर लो। कौन सा हाँ, बताओ जन्नत ना का मैं तारुफ, ये तारुफ तारुफ ले लो, जन्नत किसके, है क्या। औरतों को ये कहें कि हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे, जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, ये आपको जवाब है जो हाफिज साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, हाँ जी, ये अभी थोड़ी वीडियो चलाई है तो जन्नत ये है अच्छा बस बात सुनना कि ना, अभी मेरा भी तो सवाल करने दो ना मरज़इयों मुझे, के अब देख एक लो। सवाल कर रहा हूँ, एक मिनट भाई, चल मैं मरज़ई मर एक ना सवाल, जाए, कर ला अच्छा सवाल। अच्छा अल्लाह हाँ, मरज़ई मर अब ना एक सवाल, अल्लाह पाक हमें अगर जन्नत में लेके जाता है, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह, जिसके अमाल अच्छे होंगे वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में जो बंदा ख्वाहिश करे वो पूरी हो जाती है ना, बिल्कुल पूरी हो बोलने से जाती है। पहले, तो जन्नत में जब मैं आपकी बाजी का रिश्ता मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा, चले आपकी ठीक, अब मैं बाजी का जवाब उधर दूं, मैं रिश्ता अब मैं मांगूंगा, जवाब दूं, अब मैं बताओ जवाब दूं ना। उधर देखे ना, अब आपने मुझसे सवाल पूछा, अब मैंने जवाब देना है। या तो यार ये मैंने ना आपकी ऐसी तो नहीं ना। बाजी का अब रिश्ता मेरी लेना, बात वो तो सुनो यार, अब जवाब खुद सुन लो, बोला तेरी है, मेहरबानी। ये देखो कुरान क्या कहता खुद है, बोला कुरान है, ये कहता है। जन्नत में जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैंने बोला है, ये देखो, जन्नत में जो चीज मांगोगे वो, ला यस्माऊन फीहा लगवन इल्ला सलामा। तो अल्लाह ने फरमाया कि उधर मैं वहां पे आपकी कोई कोई लघु बात नहीं होगी। हाँ, तुम्हारी माँ की जो है वो 72 अफसियों ने टांगे मैं जो उठा बोल के रहा हूँ खुद ही उसका मारनी है। जवाब दो, तुम्हारी तेरी माँ की टांगे उठानी है, ख्वाहिश वो होगी पूरी। ये ऊपर ले इसको काल कि भाई वो जो जायज है, लेकिन तुम्हारी माँ की तो वहां पे खुद ही ठुकनी है। ऊपर आना मरज़ैया, कुरान तो कहता है कि वहां पे लग बात नहीं होगी, लेकिन तुमने कहा नहीं होगी, तो अब तुम्हारी माँ की खुद ही 72 अफसियों को तो ठुकनी है कि नहीं। आ ऊपर, भाग गया मरज़ैया। भाई कोई गलत मतलब ना ले, वो ये मरज़इयों के यहाँ बड़ी मुहज़्ज़ब गुफ्तगू समझी जाती है।
अच्छा देखिए कैसी बात है कि इनके सामने मिर्ज़ा जूनियर मंगोल कायनात के बदतरीन मुशरक का सारा शिरक इनके सामने वाज़ह किया जाता है, लेकिन ये मंगोल मरज़ई अगर मगर डालकर उस पर हल्की सी लानत डालकर फिर उसके ऊपर चुन्नी दे के चले जाते हैं। तो मिर्ज़ा इंजीनियर जो है वो भी जनाब वो कहता है कि औरत जो है वो मर्द भी बन सकती है और मर्द औरत भी बन सकता है। तो मरज़इयों से मेरा सवाल है कि मिर्ज़ा जूनियर मंगोल छोकरा अगर लोधी की ख्वाहिश करे तो फिर रोला पड़ेगा कि नहीं वहाँ पे? मैं तो भाई इनकार कर देना, सीधी गल है मेरे लो जे जवाब मैनू नहीं चाहिए मंगोल छोकरा। अब मरज़इयो अच्छा, आजो। वो नीचे एक वो है सनान तारिक मरज़ई, कादियानी है, ये मुल्हिद है। मरज़ई सारे कादियानी मुल्हिद ही होते हैं। कहता है जी अपनी बात पर गुस्सा करके, भाई हम तो बिल्कुल मानते हैं कि जन्नती की हर ख्वाहिश पूरी होगी। वो कौन सी? कि अल्लाह ने खुद फरमा दिया और नबी अक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस के अंदर फरमा दिया। वो क्या है कि वहां पे लघु बात, गलत ख्याल, कोई ऐसी वहां पे बात नहीं होगी, कोई ऐसी, बल्कि क्या होगा, तस्बीहात होंगी, सलाम ही सलाम होगा। तो इन मरज़इयों की माओं की जो ख्वाहिश है, इनकी शर्मगाहों की जो ख्वाहिश है वो बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा मर्दों की है। वो इधर नहीं पूरी हो रही। अब मरज़इयों ने कहा कि चलो जो है वो चलो उम्मीद रखेंगे हालांकि है इधर ये सारा कुछ मामला इनका, तो हम ये कह देते हैं कि जनाब वहां पे तुम्हारी ये जो है ना शर्मगाहों की ख्वाहिश वहां पे पूरी हो जाएगी। ये जो सनान तारिक है ना, इसकी अम्मी को तो मैं कहता हूँ 72 अफीनी वो भी कम पड़ जाएंगे सनान तारिक की अम्मी को, और इसकी बाजी जो है ना वो तो छोड़ ही देना। इन मरज़इयों की माओ को जो है ना वो 72 अफी कम पड़ जाएंगे। ताजी ये 72 का फिगर आपने देखना, इसमें तो ला तादाद है, वो कहता अनलिमिटेड, एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं ना, वो तो लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 2-4 करोड़ जितने मर्दों की ख्वाहिश करे मर्जियों की अम्मियाँ, मिर्ज़ा जूनियर खुद औरत बन के ख्वाहिश करे तो उसको उतने अफी मिल जाएंगे, कोई रोला नहीं है। तो मिर्ज़ा ये जूनियर जो है एक तो भाई मैं एक लम्हे की मैं बात रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि हमें हमेशा की जिंदगी मिलनी है, तो एक लम्हे की मैं बात कर रहा हूँ 72 की। अल्लाह एक लम्हे की। तो मिर्ज़ा जूनियर मंगोल छोकरा जो है उस्ताद जी देखें, मिर्ज़ा जूनियर का जो नाना था वड़ा मिर्ज़ा कादियानी टट्टी मुतरिन शलवार काना दज्जाल, वो भी देखे ना 10 मन का 15 मन का ये लास्ट डायनासोर अपने ऊपर चढ़ा लेता था, उससे भी कोई टेंशन नहीं होती थी। तो मिर्ज़ा इंजीनियर जो है इसके अंदर भी बहुत स्टेमिना पाया जा रहा है, और 2-4 लाख बंदे तो जनाब एक वक्त में एक लम्हे में आर पार कर देना, ये मिर्ज़ा जूनियर मंगोल छोकरे के लिए कोई मसला ही नहीं है, नथिंग सीरियस। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आपने रिकॉर्डिंग की होगी, ये रिकॉर्डिंग ना चाहिए, ये रिकॉर्डिंग जो है ना वो टिकटॉक पे लगानी है सब लोग भाइयों ने। ये बड़ी रिकॉर्डिंग हो बड़ी रही है, रिकॉर्डिंग हो रही ये ना ये काफी दिनों से आ नहीं रहा था, खिड़की में नहीं आ रहा था, तो माशाल्लाह आज आया खिड़की में, और सही तबलीग जो है ये करके गया है आज। और खुद ये मानना है कि मैं चित्र खाने आया हूँ, चित्र खा के गया है। तो ये टिकटॉक जो है ना इसके ऊपर वीडियो लगाए इनकी। आसफ भाई को इन्होंने बड़ा तंग किया है, आसफ भाई ने मंजी ठोकी है, लेकिन उनको पर्सनल में इधर लाइव आके इन मरज़इयों ने बड़ा तंग किया, और इसने बड़े आके जो है ना वो मैसेजेस इस तरह के आसफ भाई के साथ किए हैं। मुखबर भाई आप ऊपर आ जाए, वो कह रहा था, ऊपर आए, वो कह रहा था जी उनसे पूछ लें, तो आप तो खुद गवाह हैं। वो कह रहा जी उससे पूछ ले, मैं मिर्जा इंजीनियर को जानता नहीं मानता नहीं, हालांकि वरहमतुल्लाहि मेरे वबरकातुहू। खुदा का ये दिफा कर रहे थे, आपका नाम ले रहा था। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਾ ਲਓ 3 ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 3 ਤੇ ਪਿਓ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਟੁਰਿਆ, ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂਰੀ ਨੂੰ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਕਿਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਗੈਰਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਾਮੀ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਰੀ ਭਰੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਚਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ। बाकी वो मेरे अल्फाज भी बीच में आ जाएंगे, लेकिन मसला कोई नहीं है। वो इनकी ये जो शर्मगाह, वो कहता है मुझे खुद छितर मारो और हमारी माओं की शर्मगाहों की जो ख्वाहिश है ना वो खुद उसको ठोको। तो भाई वो पंजाबी में हमने उसका नाम ले लिया, तो मुहज्जब लफ्ज तो यही था, तो लेकिन वो पंजाबी में फिर तो यही कहना ना। चलो कोई बात नहीं, पंजाबी भी अपनी जुबान ही है, कोई बात नहीं। अमीर हमजा साहब हैं जी। सलाम अलैकुम। जी जी मीर हमजा साहब। अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम अला मिन अत्तबाल हुदा। जी करें बात। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैर करें जी यार। इसका क्या भाई, इसको आपने कौन से कपड़े पहनाए हुए हैं और इसका क्या गुनाह है, जुर्म क्या है इसका? ये कहता है कि मुसलमान शिरक करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो मुसलमानों पे इस तरह का बुहतान बांधे ना, तो उसको हम इस तरह के कपड़े पहनाते हैं। सही है। तो कौन से वो लोग हैं जो शिरक करते हैं, मतलब क्यों, किनको कह रहा है वो? ज़ाहिर है टारगेट तो करते ही होगा ना। आप भी पहनना चाहते हैं ये वाले कपड़े? मुझे भी पहना दें यार, कोई मुश्किल नहीं है। बदनाम नहीं, क्योंकि होंगे आप भी हाँ, ये तो है, रंडी जब तक वो रंडी पूना ना करे तो वो मशहूर नहीं होती। रंडी मशहूर ही ऐसे होती है। यार तो ये आप भी कौन अपने सा ब्रॉड तरीका या पे सलीका है आपका? मैं तो कभी नहीं, ब्रॉड नहीं रंडी लगाता मेरे भाई। मैं नहीं, आपने खुद ही कहा कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। नहीं, वो तो आपने रंडी मुझे क्या कपड़ों का पूछा है ना। रंडी क्या नहीं, आप तो खुद अपनी ब्राड पे मुसलमानों पे फतवे शिरके लगा रहे होते हैं। कौन से भाई बात, तो कोई कुल हाथ बुरहान को मिन कुंतुम सादिक़ीन, भाई कोई दलील है तो बात करो, ऐसे ना इल्जाम लगाओ मेरे भाई। मैं तो आपसे चलें, सिंपल अभी सा पता सवाल चल पूछा। अच्छा, या अली मदद कहना शिरक है? यार जी मुझे ये रिकॉर्डिंग कर रहा जी चला ले एक भाई जी। या अली मदद कहना शिरक है? बताइए। या रसूल अल्लाह मदद कहना शिरक है? जी देखें, ये जो तालीम है ना तो मेरे रब की है, ना रसूल की है, ना सहाबा की है। सही है मेरे भाई? और ना हमें ये मिलती है मेरे भाई। सिर्फ इतना सा जवाब है इसका, अगर आपको पसंद आए तो ले लो, क्योंकि ये कहीं से साबित नहीं है। देखिए भाई, बात सुने ना, तो उस दौर में मैं था ना आप थे। हमारे पास जो सोर्स हैं वो पुराना हदीस है मेरे भाई। अमीर हमजा साहब, एक छोटा सा मासूमाना सवाल है। ये जो आपने पफ बनाया हुआ है, ये तलीम अल्लाह ने दी है कि रसूल ने दी है? ये बुखारी में है कि मुस्लिम में है? ये जो आपने पफ बनाया हुआ है, ये जरा थोड़ी सी तलीम इसके ऊपर, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा जी। ज़ातियात पे ना आए, हालांकि आप अपनी तस्वीर और मिर्जा की देखे ना तो सेम ही एक दफा लगा नहीं, ये जो आपने पफ बनाया हुआ है, ये डिंगा पफ बनाया हुआ है, ये कुरान के अंदर है कि हदीस में है? ये तालीम किसकी है? मैं कह रहा हूँ, छोटा सा सवाल पूछे सर, बता देता हूँ, जवाब ले लो ना। आप कह रहे थे ना कि या अली मदद या रसूल अल्लाह वगैरह, ये अल्लाह रसूल की तालीम नहीं है। तो काउंटर क्वेश्चन में कर रहा हूँ कि ये जो पफ आपने बनाया हुआ है, तो आप दलील देना सर। नहीं, वही ना दलील दे के बात ये है कि आपकी कुरान हदीस के ऊपर इतनी नजर है कि आपने फौरी तौर पे रिजेक्ट कर दिया कि ये कुरान हदीस की तालीम नहीं है। इसलिए मैंने पूछा है, आप नाराज ना हो।
کہ بھائی آپ کی جب قرآن حدیث کے اوپر بڑی نظر ہے, گہری نظر ہے, تو کوئی پف بنانے کا بھی تو کوئی ثبوت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی ابھی آپ جواب لے لیں پھر اس کا ذرا. جی جواب بھی تو چاہیے. جی سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو میں نے ٹوپی پہنی ہے یا یہ جو سٹائل ہے میرا, یہ میرا دین ہے. میں نے یہ جو ہے نا آپ کو کہا ہی نہیں ہے میرے بھائی, میرا یہ تو دعویٰ ہم نے ہے ہی کب نہیں. کہا ہے کہ یا علی مدد یا رسول اللہ کہنا ہمارا دین ہے؟ زبردست. ہم نے تو یہ دیکھو بات نا, کی دیکھو نہیں ہے. یہ زبردست, ماشاء اللہ, جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. زبردست. ایسا لوگوں کو بتائے نا کہ یہ ہمارے دین میں شامل نہیں ہے, یعنی کہ یہ نہیں, بات آپ کی نے چیز پھر ہے. کیسے سمجھ لیا کہ زبردست. یہ ہم نے دین کی بات کی ہے اور Very آپ good. کے پف کا سوال جو کیا یہ دین نہیں ہے؟ یہ جمع تقسیم تفریق یہ کیسے آپ نے کر لی؟ سر سن لینا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں ہماری اور آپ, میری اور آپ کی بات جو ہے اور نا وہ یہ میچ جو کر گئی نا میرے بھائی. آپ نے یہ جو داڑھی منڈائی ہوئی ہے, خشخشی داڑھی کی ہے, یہ اس کے بارے میں بھی قرآن حدیث کی کوئی دلیل دے دیں, کیونکہ بڑی قرآن حدیث کے اوپر آپ کی نظر ہے. جی سر دیکھیں داڑھی میں دین نہیں ہے, یہ جو آپ نے دین میں تو مائک داڑھی ہے. لگایا ہوا ہے, اس کا بھی کوئی قرآن حدیث کی کوئی ایک دلیل دے دیں کہ بھائی مائک لگانا, داڑھی منڈانا اور تصویریں بھائی میں بنوانا, یہ کب کہہ رہا ہوں, میں یہ تصویریں بنانا, جبکہ حدیثوں کے اندر تو تصویر بنانا حرام کہا گیا ہے. یار یہ اس سے آپ مطلب اس سے نہیں, آپ کیا قرآن ثابت حدیث کرنا پہ تو چاہتے نظر ہیں؟ آپ کی ہے نا. آپ نے دیکھیں جٹ سے کہہ دیا جی او ہو قرآن حدیث میں ایسی کوئی کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ اتنا اچھا, بڑا اس کا دعویٰ مطلب ہے, ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ بڑے سے بڑے علماء بھی یہ چیلنج نہیں کر سکتے, کیونکہ میں بھی عالم دین ہوں, میں مفتی ہوں, تو دنیا کی ہر حدیث کے اوپر تو میری نظر نہیں نا. ہو سکتا ہے کسی حدیث میں جی بالکل. کسی چیز کا ثبوت ہو, تو میں نہیں یہ کہہ سکتا, یہ چیلنج نہیں کر سکتا یہ دنیا کی کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے, قرآن کی کسی آیت میں ایسا نہیں ہے, یہ اللہ رسول کی تعلیم نہیں ہے. اچھا یہ تو دنیا کا بڑے سے بڑا عالم جو ہے نا وہ چیلنج نہیں کرتا کہ جو مرزا جونیئر جیلمی کا ایک چھوکرا جو ہے نا اٹھ کے اتنے بڑے بڑے چیلنج کرے. تو اگر آپ یہ چیلنج کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی جواب دیں. پھر یہ جو آپ نے پف بنایا ہوا ہے, چرسیوں والی کٹنگ کروائی ہوئی ہے, آپ نے چرسیوں والی جو خشخشی داڑھی رکھی ہے, مائک لگایا ہوا ہے, اور جناب تصویریں کھنچوا رہے ہیں, ان سب کے ثبوت بھی آپ قرآن اور حدیث سے دیجئے گا. جی عثمان بات کرو یار, تم ہی کرو. اچھا یار ایک چیز تو جو ہے نا وہ مجھے ثابت ہو گئی ہے کہ زبردست ہو گیا بھائی نے, بہت اچھا جو ہے نا کاؤنٹر جو ہے نا جواب دیا ہے کہ اس کا مطلب اصل میں میر رمضان صاحب ہم نا قادیانیوں اور مرزیوں کے ساتھ باندر قلعہ کھیلتے ہیں باری باری, ہم نے باریاں رکھی ہوئی ہیں. تو ابھی باری جو ہے نا عثمان بھائی کی ہے, تو ان کے بعد یہ لودھی بھائی کی باری ہے, تو پھر تھوڑی سی جو کسر رہ جائے گی تو وہ جناب حسن قادری صاحب بیٹھے ہیں. تو جب وہ باری لے لیں گے تو جب یہ باری لے لیں گے پھر میری باری دیکھ رہی ہوں گی. ہم تو اصل میں باندر قلعہ کھیلتے ہیں تم لوگوں کے ساتھ. جی عثمان بھائی بات کون سا طریقہ یہ کرنے کا یار, جی مرزا جی روڈ پہ آئے نہ کوئی گالی دی ہے, یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا نا ایک دم سے یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا نا یہ وہی طریقہ. میرا حق نہیں بنتا کہ آپ ثبوت دے دیں بھائی, میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی نا. نہیں وہ ہم نے کاؤنٹر کویسچن یہ کیا ہے مرزائی جی, ہم نے کاؤنٹر کویسچن یہ کیا ہے کہ آپ کا حق نہیں بنتا کہ یہ جو خشخشی آپ نے خسروں والا کام رکھا ہوا ہے اور خسروں جیسے آپ نے اشارے رکھے ہوئے ہیں, پف آپ بناتے ہیں بھائی, اس کی آپ دلیل نہیں. عثمان بھائی خسروں جیسے نہیں, چرسیوں جیسے. خسرے تو داڑیاں رکھتے نہیں ہیں, خشخشی چرسیوں والی, چرسیوں والی داڑھی ہے. سر مشین کو بھیجیے, میں ابھی چیک وہ اصل میں نا میرا اشارہ تھا یہ جو خسروں کی طرح اس نے وہ دو نشان بنائے ہوئے نا وکٹری کا. تو ہاں جی مرزائی جی یہ ذرا حدیث اور قرآن کی ایک آیت پڑھیں اس کے اوپر. جی سر, جی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے مجھے چیک کرنا ہے میں پوچھ رہا ہوں یا نہیں, منہ کے پاس اشارہ بنایا ہوا ہے, منہ کے پاس اشارہ بنایا ہوا ہے عورت شخص کے لیے. میں بتاتا ہوں ہم اس کا فیصلہ نا آپ کو چیک کرنے کا فیصلہ ہم نہیں. یہ اصل میں لودھی بھائی یہ بتا رہا ہے کہ میں 2 نمبر ہوں, یہ 2 نمبر کا اشارہ.
जी अच्छा अच्छा मरज़ई जी, ये है आतिउल्लाह आतिउर रसूल, आतिउल्लाह हाँ आतिउर रसूल, हाँ ये जी। सब तो ये कौन सी ये खशखशी जो है वो आप इताअत कर रहे हैं नबी की, और आपको दलील मिल गई है, हर चीज आप कुरान और हदीस है मरज़ई, कोई बात कहाँ पे है नहीं ये? भाई। लख आप दे ये लानत दो उंगलियों को मरज़ैया, इशारा, लख दे मरज़ैया, ये 2 उंगलियों का यार इशारा ये है कि आप बात 2 नंबर हैं जी लोधी और भाई अभी लोधी भाई की बारी है आतिउल्लाह भाई। आतिउर रसूल। लोधी भाई अब बंदर किले की आपकी बारी है। यार ये अपना मरज़ई जी, ये देखे ना आपने ये जो मुंह के पास इशारा करके, मतलब आपने ये लिखा हुआ है, बोर्ड लगाया हुआ है कि मतलब मुंह हाजिर है ओरल सेक्स के लिए, इस तरह का कोई इशारा है आपका? जबरदस्त क्या कहना बरेलियों की क्या चाह तालीम है ये, दावत बरेलियों की है। नहीं कहना नहीं चाह, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं लोधी यार, भाई मैं ये कहना चाह रहा गौर हूँ करिए मुंह के करीब बरेलवी अम्ब- लड़कियां अम्ब- ब्रोड अम्ब देखती की हैं, तस्वीर बनी अच्छा, हुई मुझे अम्ब पसंद की ही ना कर ले। अम्ब की जी, जी। तस्वीर बनी हुई है, वो देखे जरा गौर से यार देखे। सारे लगाओ, अच्छा ये सारे लगाओ यार टिप्पणी। आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी अमीर हमजा साहब, आपकी बच्चियां आवाज देख नहीं आ रही होंगी हेलो? मुझे। आवाज अच्छा, नहीं आ नहीं रही, आए, आवाज नहीं होती मैं थी। आपकी बच्चियां ये जो है ना वो आपने मुझे ये देख जो रही होंगी मैंगो की बरेलवी। तस्वीर लगाई हुई है, चक्कर क्या है? ये आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या चक्कर है इनकी। हेलो आवाज नहीं आ रही। आपकी बच्चियों पे भी आता हूँ, जो आपने लिखा हुआ है अपनी किताबों में, ये फतवे लगाने वालों ने, कि उनकी दुबर भी मार सकते हैं। वो मिर्जा जी ने रबी आया ना, वो कहता है कि तुम्हारी माओ के चूपा भी लगवा सकते हैं, तुम्हारी भी किताबों में तुम भी मरसई हो, वो लानती तो है। तुम्हारे पुराने बापों के बारे में लिखा हुआ है कि तुम्हारी दुबर में भी कर सकते हैं। वो हम बताएंगे, पहले ये लोधी भाई का जवाब दो ना, कि अभी ओरल सेक्स वाला जो इशू है बड़ा गरम चल रहा था, तुम आ गए हो और आके तुमने भी विक्ट्री का निशान बना दिया कि भाई ऑन दो भाई, ऑन दो जी। लोधी भाई ठोके इसकी मंजी। यार मीर हमजा, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आते इतना बड़ा दावा कर दिया कि जनाब किसी हदीस में ये चीज़ नहीं लिखी हुई, तुम अपने आप को क्या मुजतहिद समझते हो, कोई फ़कीह समझते हो, कोई इमाम समझते हो वक़्त का, क्या समझते हो? कितनी की तलीम है तुम्हारी? जी लोधी भाई चर्सी समझते हैं। हैं? दलील तो दे दें फिर यार। नहीं, तो तुम सब कितना देते पढ़े हैं। हुए हो? तुमने एक बात नहीं, दलील हम क्या दें जब तुमने बात ही खत्म कर दी? तूने कहा जी कहीं है ही नहीं, इतना बड़ा दावा कर दिया तूने। यानी तू मैं दलील मांग रहा हूँ। दलील कहाँ मांगी तुमने? तुमने कहा है ही नहीं कहीं कुरान हदीस में, दलील तो तुमने मांगी ही नहीं। रिकॉर्डिंग हो रही है सर मैंने दलील ही मांगी थी मेरे भाई। और तूने दलील कहाँ मांगी यार? रिकॉर्डिंग हो रही है। तूने कहा जी ये कुरान हदीस में मैंने कहा- ऐसा कुछ है ही नहीं। जब उस्मान भाई ने लिखा? सवाल किया या रसूलुल्लाह मदद के हवाले से, तो तुमने कहा जी कुरान हदीस में कहीं है ही नहीं। जब तूने इतना बड़ा दावा कर दिया तो तुम अपनी कोई इल्मी हैसियत हमें बताओ कि तुम वक़्त के मुजतहिद हो, कोई फ़कीह हो, कोई जनाब इमाम हो, तुम है कौन हो, क्या बुलाओ, तुम कितने पढ़े हुए हो? अपनी तालीम, अपनी एजुकेशन तो बताओ ना जरा, दुनियावी एजुकेशन क्या है, दीनी क्या है? मैं रिश्ता लेने नहीं आया। एमए चर्सियोलॉजी किया है इसने। एम ए औरिलियात, एम ए औरिलियात किया? तो लेना, मुझे म्यूट तो ना करे, मुझे बोलने तो। नहीं नहीं मीर हमजा साहब, मुझे हमारी सिर्फ तो इतना बात हो बताएं, गई। आप है कौन, आपका दावा क्या है, अपना दावा बताएं। मुझे बड़ी स्क्रीन पे करे, मैं बताता हूँ। बड़ी स्क्रीन पे आप मुझे ये बताएं आपका दावा क्या है? आप वक़्त के इमाम मेरी हैं, बड़ी मुजतहिद स्क्रीन- हैं, कोई फ़कीह हैं, आप जनाब मैं कोई बताता हूँ। शेखुल हदीस हैं, क्या हैं आप? 13वां इमाम हूँ। 13वां 13वां इमाम। इमाम। अच्छा यार बड़ी स्क्रीन पे करो, मेरी 13वां पिक्चर बड़ी इमाम। स्क्रीन पे करो यार। कौन हो ये जी, बताना जरा, बताना सर कौन हो? बताता हूँ। 13वां इमाम ते बड़ी जिद्दा स्क्रीन जाल पे है। का- ਉਹ ਤਜਾਲ ਹੀ ਸਤਾਜ ਜੀ ਤਜਾਲ ਉਹ ਹੈ ਲੈ ਉਰੀਲਾ ਤੇ ਜਾਲ हेलो ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੇ ਭਾਈ। हेलो, ਉਰੀਲਾ ਤਜਾਲ बड़ी स्क्रीन पे तो करो अस्सलाम वालेकुम यार। यार देखो यार कैसी यार दर फिटे मुंह है तेरे ऊपर अमीर हमजा कि तू इतना बड़ा दावा कर बड़ी रहा है स्क्रीन पे यार। करो मेरी तस्वीर। नहीं बड़ी मेरी स्क्रीन बड़ी ਤੇ screen पे ਕੀ करो मतलब यार। कि क्यों मिनी गॉड ही रहा है ਇੱਥੇ रहा जो मिनी छोकरा ਜਿਹੜਾ यार। ਬਣਿਆ है तू ਇੱਥੇ रहा क्या बड़ी स्क्रीन पे क्या मदद नया ये कोई मदद मैनुअल मांग जारी रहा है, करना? मदद मांग रहा है लोधी भाई। अभी तो कह रहा था मदद मांगना कहीं हाँ तो आप खुद कर लो बड़ी स्क्रीन, खुद करो। जी असल में ये लफ्ज़ या लफ्ज़ ना या ए और हमजा मफ्तू जो है, या जो है ये करीब और ये उलामा साहब, एक मिनट उलामा साहब, यहाँ पे मंजी ठोक प्रोग्राम चल रहा है, मेहरबानी जरा जी लोधी भाई।
भाई किसी ने कोई इल्मी गुफ्तगू करनी है कि सारे एक जैसे यार ये इल्मी गुफ्तगू ही कर रहा हूँ कि तुमने एक चीज का दावा कर दिया या रसूलुल्लाह मदद पे, तुमने कहा जी ये कुरान और सुन्नत में है ही नहीं, इतना बड़ा तुमने दावा कर दिया, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुमसे पूछूं कि मेरा मुखातब कौन है। आया तुम्हारा दावा क्या है? तुम वक़्त के कोई इमाम हो, कोई मुजतहिद हो, कोई फ़कीह हो, कोई जनाब कोई शेखुल हदीस हो, कोई जनाब क्या रुतबा क्या है तुम्हारा जो तुमने पूरे ज़खायर अहादीस तुम्हारे नज़रों के सामने है और तुमने सारा कुछ कंगाल के कह दिया कि ये जनाब कुरान और सुन्नत में है ही नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी इल्मी क्या हैसियत है? सर उन्होंने ना एक बंदा है को बरोड़ पे ना एक मुबशर उसका नाम है को बरेली। यार तेनू मेरी गल सवाल दा समझ नहीं आ रही, तेनू मेरे सवाल दी समझ नहीं आ रही यार। तूने इतना बड़ा दावा किया, अपना आप बता तो सही ना तू कौन है? लोधी इनु चरस संघास इनु फिर समझ आ रही है। उन्होंने ना करोड़ों को दिया पे इसको टांगा हुआ था तो मैं उनके पास गया हूँ, उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा यार ये इस मुबशर का क्या है, मतलब मैंने तो इसको नहीं पुत्र तू जानता। बोलन जोगा हो ते जाना, तू एडा बड़ा दावा कर छड़िया है। मीर हमजा साहब आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? मैं आपसे इतने प्यार से मोहब्बत से आपको जानना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? इस तरह आपसे किसी ने भी बात नहीं करनी जिस तरह मैं कर रहा हूँ। काइंडली आप बताएं आपकी इल्मी काबिलियत क्या है? इल्मी काबिलियत क्या है? जवाब मिलेगा जी बताएं, इल्मी काबिलियत बताएं अपनी। बोलने तो और सरकार अपनी इल्मी काबिलियत बताएं। जी जी सर देखिए मेरी बात सुने, फिर आप बात का बुरा मानेंगे। मैं कोई इधर इंट्रोड्यूस तो नहीं अपना आप करवाने आया, मैं कुछ ना कोई रिश्ता सारे इंट्रोड्यूस आपने करा दिया। मीर हमजा साहब आपने कहा मैं जनाब कुरान हदीस में एक चीज है ही नहीं, इसका मतलब है यू आर तुमने सारी चीजों के ऊपर तुम्हारी इल्मे हदीस के ऊपर तुम्हारी दस्तरस है, कुरान के ऊपर तुम्हारी दस्तरस है, इसलिए तुमने ये दावा किया ना? भाई मैंने ये दावा किया है कि आप मुझे कुरान और हदीस में या सहाबा के कौल में ये मुझे दिखा दें। मैंने बोला दिखा दें। वाकई ये 13वां दज्जाल जे ते चलो ਉਹ ਦਜਾਲੀਅਤ कर रहे हैं। पहला दावा करके कहंदा मैं ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ कि मुझे दिखा दे। हाँ ये भाई समझ आप लख दी लानत दज्जाल। एक मिनट ये मंजी ठोक की जगह अब हवाले एक दो दे दें ताकि इसको थोड़ी ठंड पड़ जाएगी। वेरी गुड, आप बंदा सही है मोहम्मद, जबरदस्त जबरदस्त। जी जी एक तो हवाले दे ताकि ठंड पड़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह माजरत के साथ हजरत जी जरा मेहरबानी फरमाए आप रंग में भंग ना डाले। हवाला हो गई नहीं ए हवाले वाले मुंह है नहीं ना चर्चियां दे हवाले ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ए लोधी तू आप मेरे दे वर्गा लोधी चक दे फटे। उस्ताद जी वही मैं पूछ रहा हूँ ना मीर हमजा साहब, बताएं फिर क्या करना है अब? ठीक है आप कौन है? अपना दावा बताएं, दावा करें। अच्छा मुबशर की और मुबशर साहब को छोड़ो, तुम मुफ्ती साहब को छोड़ो, मेरे से बात करो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दावा क्या है? अपना दावा तो बता देना भाई। मेरा अच्छा मीर हमजा मुझे बता दो कितना पढ़ा हुआ है, कुछ बता मुझे। मदनी कायदा आता है तुम्हें? पढ़ा हूँ मैं, बता सर। मदनी जो है ना, मैं जो ना कायदा नहीं पढ़ता, ठीक है। मैं इस तरह का मैंने तालीम हासिल भी नहीं की क्योंकि अच्छा इस तरह की तालीम गया हूँ ना। जी जी यानी कुरान और हदीस की तालीम इस तरह की तालीम होती है? सर मदनी कौन सी है भाई मेरे भाई? कुरान है ना या हदीस है ना? वो बोले माइक मरज़ई नेड़े है, मरज़ई नेड़े है। ऐ जरा बोलना खोल के, ओड़ा जेड़ा पीछे तू भाया है जेड़ा तेनू बोलण नहीं दे रहा है, हुण मुंह जो कट के तू बोलते। अगर मुर्ज़ई कहते हैं कुरान और हदीस तो फिर इसका मतलब है फिर वो मतलब जो कुरान और हदीस का नाम ले वो मुर्ज़ई होता है आपकी नजर में? अच्छा बताएं ना फिर क्या करना है अब? कुरान और हदीस का दावा इतना बड़ा आपने कैसे कर दिया? एक बंदे ने मेरा थोड़ा सा साथ दिया था कि इसको कोई हवाले दिखा दो, उसको आपने जो ना पलटा दिया बेचारे को। हाँ जी उसको थले ला छड़िया सी। हाँ जी ए लोधी नू जवाब देवो ते नाले यार तुसा मेनू ए दस्सिया ही कोनी यार, तुसी मेनू ते कोई जवाब दिता कोनी मीर हमजा भाई कि ए जेड़ी चरसियां वाली तुसा दाढ़ी रखी है, चरसियां वाली मोबाइलियां वाली, ए कुरान दे विच किथे लिखी है? ते नाले आ जेड़ा तुसी तस्वीरां खिचवांदे पे कुरान दी से मना करदा पे हराम है तस्वीर खिचवानी। ते ए नहीं जवाब दो ना लोधी यार पूछ यार दीन क्या नहीं। उस्मान भाई उस्ताद मोहतरम मेरी तस्वीर बड़ी कीजिएगा जरा प्लीज, मेरी तस्वीर बड़ी कीजिएगा। हाँ, मेरी तस्वीर करो यार, मेरी तस्वीर
نہیں نہیں میری تصویر بڑی کیجیے گا وہ تیری تصویر ہی آئے گی اچھا یہ میر حمزہ صاحب یہ دیکھیں ذرا صاف ہی میر کر حمزہ دیا صاحب ایک منٹ ٹھہر تو جا مرزیا بلر آ یہ رہا ہے دیکھیں دھندلی ذرا آ رہی یہ آپ نے دھندلی 2 انگلیاں کھول صاف سے کے لگاؤ تو آپ نے اپنا منہ جناب سامنے پیش کیا ہوا ہے آتی کس اللہ لیے آتی الرسول نہیں آتی نہیں یہ منہ اللہ کس لیے آتی پیش کیا الرسول آپ نے یہ 2 انگلیوں کے درمیان آنکھیں اگر بند 2 ہو نمبر آپ تو نے کیا دن 2 بھی نمبر کام اندھیری رات ہے کروانا چاہ رہے ہیں آپ آنکھیں اگر ہاں جی بند ہو تو دن بھی اندھیری رات ہے وہی میں اس پوچھ میں رہا ہوں نا بھلا 2 کیا نمبر قصور یہ عقل بند آفتاب نہیں نا کا منہ بند ہے آپ کا اس وقت نا تو یہ کیا پوزیشن ہے یار یہ مرزا کیا انجینئر ہے کرتا جناب کنڈم سے ہر چیز جائز ہو بھائی جاتی ہے مجھے آپ یہ بتائیں آپ دماغ سے بھی سننا ہے اس عثمان طرح بھائی بات ہوتی ہے میرے بھائی آپ میں سے کوئی قابل بندہ ہے کوئی بات کرنے کے صرف ایسے ہی کرتے رہو گے یار نہیں وہ دیکھو مرزائی جی پتہ نہیں اتنے قابل ਸਾਡੇ آپ ਵਾਂਗੂ آگے ਨਾ ہیں ਕੋਈ ਵੀ مرزیا ਚਰਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਰਗਾ ਆਪਣੀ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਚਰਸ ਪੀਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਪਏਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਸ ਪੀ ਕਿੰਨੀ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਈ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਈ ਲੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਜ਼ਈਆ ਓਏ ਓਹ ਬਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਮਰਜ਼ਈਆ ਬਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਰਜ਼ਈਆ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਇਲਮੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੱਸ ਨਾ ਲੋਧੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਕੋ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ अन्नी रे ना भाई होता लोधी भाई बीच में ना आपकी तस्वीरें आ गई यार घर की ना तो मैं चल रिकॉर्डिंग मैंने दस लगाई ना हुई है जरा ओ यार इसको किसने नीचे उतार दिया मरज़ैया दस कि कुरान हदीस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿਕਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੀਉल्लाह ਵਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੂੰ ਚੂਪਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਈਆ اتنے بڑے دعوے ہیں ਯਾਰ اس ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਈ ਹੈ ਯਾਰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਆਦਾ ਮੈਂ 13ਵਾਂ ਇਮਾਮ ਆ ਤੇ 13ਵਾਂ ਤੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਦਜਾਲ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਓਏ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਸੋ ਓਏ ਕਾਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਇਹਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਰੂਫ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸੀਟ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੈਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਾਵਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈਡੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਡਮਨ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸਟ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ जी जी बिल्कुल इस मैंने वास्ते कहा अमीरिया मजाको इसको ऊपर उठाए इसको मैं जानता हूँ ये तो मोटर चोर है सबको पता है इसका पूरी टिकटॉक पे ये फेमस है ये मोटर चोर है ये मोटरें बेच के चरस पीता रहा है इसको तो घर वालों ने अपना 2 साल अपने पास नहीं रखा पूरी टिकटॉक पे इसकी स्टोरी फेमस है ये इसको तो अपना लितर पड़े थे इसका एक गांव वाला एक आ गया था उसने इसको फिर लाइव पे एक्सपोज किया सबके सामने तो मुझे कुदरती मैंने इसको ये तो मोटर चोर है बहुत बड़ा है चस्के लेते जाके छितर खा के लगा होता है अपनी ब्राड पे मैं एक दिन ब्राड सुन ली फॉर यू पे मैं ऐसे ना स्क्रॉल कर रहा था वो ये मर्ज़ई इतने इतने बड़े दावे करके फतवे लगाए वो ललकारे अब देखे मर्ज़ैया आ गया और अपनी इल्मी हैसियत नहीं बता रहा नहीं जी दावा नहीं, हमने करना है बिल्कुल। फतवे हमने लगाने हैं दलील तुमने देनी है जी और लख दी लानत मर्ज़ैया तेरी इल्मी हैसियत तो यहीं से सब पता चल जाती लोगों को नहीं नहीं ये ब्रॉड पे बैठ के खुद मानता है ये कहता है बिल्कुल मेरे उस्ताद मोहतरम सही फरमाते हैं मेरी अम्मी और मेरे अब्बू मज़े ले रहे थे तो मैं आया उनका इरादा नहीं था और इसकी बात तो ये तो सब ने सुनी आतिफ अली की ब्रॉड में ये एग्री करता है जिनकी हर बात से कहता है वो मेरी अम्मी अब्बू बहुत इंजॉय कर रहे थे और मैं गलती से आया हूँ पूरा ये बताता है इसको तो सब जानते हैं इसलिए मैं नीचे लिख रहा था मैं कह रहा था काइंडली मुझे उठाएं तो ये अच्छी तरह इसको तो सारे वाक़े जो नशई पंगी इधर टिकटॉक पे जिनको जो है ना यकीन करें आके इधर इतनी इतनी लंबी छोड़ रहे थे इतनी इतनी लंबी
بڑے بڑے علماء جو ہے نا وہ اس طرح کے دعویٰ جات نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے، ہم نے کبھی نہیں کی جو بات ہمیں نہ پتہ چلی ہو. اور یہ اس میں کہتا ہوں اتنی بڑی خدائی دعوے کر رہے ہوتے ہیں یہ. جی عثمان بھائی، انہوں نے اپنا پلمبری ہونے کا پروف تو دینا ہے نا. ایسے کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ پلمبری ہیں؟ آپ کو ادھر اچھا یار، وہ مولانا صاحب تشریف لائے تھے تو وہ کہہ رہے تھے ایک دو حوالہ بھی دے دیں، تو چلیں ہم اپنے بھائی کی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں اور ایک دو حوالہ ہم دے دیتے ہیں. کہ یہ کہہ رہا تھا اولیاء اللہ کو بھی علم غیب ہے کہ نہیں، تو اس کے حوالے لے لیں. موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی حاملہ زوجہ کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ میری وفات کے بعد اس کے بطن سے بیٹی پیدا ہوگی. یعنی دو غیب کی خبریں دی. پہلی یہ کہ میری وفات ہو جائے گی، اور دوسری خبر یہ کہ وفات کے بعد بیٹی پیدا ہوگی، بیٹا نہیں پیدا ہوگا. تو حضرت ابوبکر صدیق نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، غیر نبی ہیں، یعنی اولیاء اللہ میں سے آتے ہیں. اولیاء اللہ کے علم غیب کی ایک اور حدیث سے ہی ہم حوالہ دیتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد نے جہاد میں رات کو بتا دیا تھا کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا. اس کے علاوہ اور بہت سے حوالے دیے جا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ حوالوں کی بات نہیں ہے. حوالے اس کو دیے جاتے ہیں جو کوئی علمی بندہ ہو، کوئی مسلمان ہو. یہاں تو چرسی اور موالیے ہیں سارے کٹھے ہوئے، قادیانی اور مرزائی، مرزا سینئر غلام قادیانی والے اور مرزا جونیئر جیلمی والے. اب ان کو ہم کیا حوالے دیں؟ یہ تو جیسا منہ ویسی چپیڑ ہے نا. تو ان کا منہ جو ہے نا صرف چپیڑیں کھانے کے لیے ہے، دلائل والا ان کا منہ نہیں ہے. جی بات کریں جی. جی بالکل استاد مخبر بھائی، ندیم بھائی، عمر بھائی، اب آپ کریے گا بات، میں تھوڑی دیر مصروف ہوں بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنی گوری ہو گئی ہے نا ہوں، میرے خیال نہ اب نہیں پرتنے لگا ادھر. نہیں جی، یہ بے شرم اور دیوس قسم کے لوگ ہیں، ان کو نہیں فرق پڑتا. ندیم بھائی، جی جی استاد محترم بھی سنے. استاد محترم، یہ جو نیچے مرزیا ہے نا عبد المجید نام کا، یہ بڑا پکا مرزیا ہے، اور اس کی علمی لیول یہ ہے، علمی تو چھوڑے اس کا. استاد محترم، اس کی عقل دیکھی کہ میرا نے پہلے اس سے مناظرہ ہو چکا ہے. موضوع تھا غیر اللہ سے مدد، ٹھیک ہے، تو یہ مناظرہ ہار گیا، ٹھیک ہے. تو ذرا نا یہ مناظرہ ہار گیا تو سب کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا مرزائی ہے. اچھا مناظرہ ہار گیا تو سارے کہتے ہیں اب اس کی آمنہ کی جیت ہوگی اور اس کی ہار ہوگی ہے. تو وہ استاد محترم وہ پھر کہہ رہا تھا کہ جو ہماری ماشاءاللہ سمامہ بھائی ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ نا جو ہے نا آپ انڈر ایسٹیڈ ہیں.
تو وہ تو مذاق کر رہے تھے استاد محترم، تو وہ پتہ کیا، وہ اس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ کہتا ہے یار انڈر ریسٹ ہو جاؤ تو پھر کیا، پھر آمنہ باجی سے پھر مجھے مناظرہ کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ ہے ان مرزائیوں کے اوقات، اور لاکھ دی لعنت مرزائیت تیرے تے، اگر ہے ہمت تو اوپر آ جا۔ ابھی کمانڈ پر مزدوری کا جا تھا، یہ کہہ رہا تھا مناظرہ کر، میں نے کہا جا، ٹھیک ہے نا، تو اگر ہمت ہے تو اوپر آ کے دکھا۔ جی استاد محترم۔ جی جی عبد الماجد آ گئے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام جناب، ریڈی ہیں آپ مناظرے کے لیے؟ جی ماجد صاحب ریڈی ہیں آپ؟ جی نہیں، ابھی میں ریڈی نہیں ہوں، ابھی آپ کو استاد محترم بیٹھے ہیں، وہ میرے لیے بھی قابل احترام ہے، جلالی انسان ہے، تو ابھی مجھے نہیں لگتا کہ میرا بولنا ضروری ہے، میں سن رہا ہوں۔ نہیں، آپ نے تو دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دی ہے نا، آپ ہمارے استاد کو استاد نہیں کہہ سکتے۔ ہاں جی، آپ نے تو بابو کو دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دی۔ کیا خیال ہے آپ کا عبد الماجد مرزائی جی؟ آپ جی نہ جی بولے، ہمارے ڈیمیج، استاد کو استاد نہ بولے، ٹھیک ہے نا، جی جی وہ صرف ہمارے ڈیمیج ہو استاد چکے ہیں، ہیں۔ بینڈیج بھی آپ لگا کے دیں۔ استاد مرزا جنید جیلمی جو پلمبر ہے، جو پلمبری کا کام جانتا ہے اور دین کا بیڑا گھڑا ہے، سمجھ آئی؟ آپ ہمارے استاد محترم کو استاد محترم نہیں کہہ سکتے۔ معذرت کے ساتھ آپ نے استاد محترم کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، ان کے شاگرد موجود ہیں، مجھ سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ شروع ہو جائے کمنٹ پہ پھر مزدوری کیوں کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، میں ریڈی ہوں غیر اللہ سے مدد مانگنا، تو آپ جو ہے نا آپ شروع کریں مناظرہ۔ جی جی مجھے ذرا 5 منٹ دے دیں جی۔ السلام علیکم، عثمان بھائی موجود ہیں؟ جی عبد الماجد بھائی، یار تنگ نہ کر تم۔ عثمان بھائی میں جدھر جاتا ہوں مجھے نیچے میسج آ جاتے ہیں سنا بھائی مرضیہ، پھر میں کیا کروں؟ پھر میں کہتا ہوں کہ چلو ایک نہیں، پھر کمنٹ مزدوری کرنی ہے تو پھر بتاؤ، پھر صحیح بات بتاؤ پھر ابھی۔ میں نہیں بتاؤں گا، وہ میں نے آپ کو ایک اور بات بتانی تھی، مجھے عمیر بھائی نے بتایا ہے کہ ابھی تک آپ کو نا شک ہے میرے اوپر کہ میں نے آپ کو گالیاں نکالی ہیں۔ نہیں، میری بات اسی وقت ختم ہو گئی ہے، میں نے تو کوئی بات نہیں کی اس کے بعد۔ مجھے عمیر مشتاق، نہ ہی ایسے معاملات کہ ہم نے کبھی کوئی بعد میں کوئی بات کی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آمنہ سسٹر کو بتا دیں کہ یہ کہ میں آپ کے بھائی ہوں، وہ ہاں، میں بس صرف مرزائی بن کے، جیسے قادیانی بن کے خود کو احمدی کہہ کے ہم قادیانیوں کو تنگ کرتے ہیں نا، تو بتا دیں کہ میں نے ایسے ہی کیا تھا، میں مسلمان ہی ہوں، میں مرزائی مرزا انجینئر کا چھوکرا نہیں ہوں۔ یہ بات آپ کی غلط ہے، میں انجینئر بھائی کو مانتا ہوں، میرا تعلق اکیڈمی سے ہے۔ سنیے عثمان بھائی، آپ نے استاد محترم بھی تشریف فرمایا، اب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، استاد محترم ریکارڈنگ کر رہی ہیں، یہ سنیے حاضرین و سامعین، اب اس کی منڈی ٹھوکنی ہے۔ اچھا ایک منٹ مرزائی جی، عبد الماجد مرزائی جی، پھر آپ کا تعلق اکیڈمی سے روحانی ہے یا کچھ اور ہے، یہ بتائیے گا۔ میرا تعلق بھی وہاں سے جسمانی ہے۔ ہاں جی، جسمانی کون سا تعلق؟ میں وہاں سے نا گزرتا رہتا ہوں اکیڈمی کے اندر، خیر سے اندر جاتے ہیں کہ نہیں پھر؟ جی پیارے بھائی، میں ابھی اکیڈمی جاتا ہوں، کوئی مجھے لگتا ہے مجھے 1 سال ہو گیا ہے، میں اکیڈمی بھی گیا تھا۔
नहीं, स्कूल वाली अकेडमी नहीं, वो मिर्जा इंजीनियर वाली मरजई जी, उसकी अकेडमी में जाते हो आप? नहीं नहीं, वो वाली नहीं मैं कह रहा। मैं भी कभी किसी को छोड़ने चला जाता हूँ, खुद भी चला जाता हूँ, कभी बैठ के इल्म हासिल करके आ जाता हूँ। सामने काफ़ी इंजीनियर साहब भी हमारे बैठे होते हैं, फिर मैं वहाँ से समोसा भी खाता हूँ, क्योंकि हमें वहाँ पे समोसा भी मिलता है सुबह सुबह। जी, सारे बंदों को जी गुजारिश है कि सुबह सुबह आया करें अली भाई की एकेडमी में। वहाँ पे एक समोसा देते हैं, साथ में ओए एक कप चाय। मजैया, हमें दावत ना दे एक मिनट मजैया। जिस काम एक के मिनट लिए आप है ना वही काम अरे, कर जी। उस्मान भाई ठोको मंजी। अच्छा मरजई जी, आपने कहा कि मैं सिर्फ गुजरता हूँ, जाता नहीं, तो फिर आपका ताल्लुक जिस्मानी कैसे हुआ, ये जरा साबित करें। नहीं नहीं, मैंने ये मंदिर भी बैठता हूँ, तालीम भी मैंने ली हुई है एकेडमी से। अकेडमी से तालीम लिया, फिर आपने घर भी दी तालीम? जी, कुछ समझ नहीं क्या कह रहे हैं। फिर मैंने कहा अकेडमी समोसे वाली अकेडमी एक ही है, तो फिर आप गुजरते हैं, तो फिर उस मिर्जा इंजीनियर वाली अकेडमी के अंदर जब आप तालीम लेते हैं, फिर घर भी जाके देते हैं वो तालीम के नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो हमारा फिर बाद में हम उधर ही लेते हैं, और कुछ अरसे के बाद हमारे पेपर हो जाते हैं, तो फिर हम वो तालीम पुरानी हो जाती है, फिर वो पीछे चली गई, सही हो गया। उस्मान भाई, अब मैं क्या करूँ, मैं जिधर जाता हूँ नीचे, हाँ भी मर सैया उनको आवाज मैं जा कहता रही हूँ है। चलो कार चल गई, चलो मैं बता देता हूँ नहीं मरजई आता जी, है। आपसे मरजई अब्दुल माजिद भाई, आपसे मरजई नहीं बना जाता। अच्छा हमना सिस्टर, ये मरजई नहीं है, ये ना अपना ही भाई है। और जो ह्यूमैनिटी की जो आईडी है ना, ह्यूमैनिटी आईडी से जो ब्रांड लगाता है, ये वही है। ये मरजई नहीं है, सिर्फ ये तंग कर रहा है आपको, ताकि जो है वो, ये क्या आपकी तैयारी क्या है इस हवाले से, उस्मान समझे भाई, बात आपकी में? बात बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ आप सही फरमा रहे होंगे, लेकिन उस्ताद मोहतरम भी मौजूद है, गवाह है, सारे भाई मौजूद है। इसने उस्ताद मोहतरम के सामने बोला, अब्बा आ गया, सामने बोला कि मैं अली भाई का स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, लख दी लानत। चलो अपने भाई समझ लेते हैं, लेकिन जो मिर्जा जुनेद जिल्मी को अली भाई बोले, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल 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 हक बात है। वो जो बने हुए हैं ना, वो वो क्या नाम है, सिद्धू जट हो गया, या वो क्या नाम है, रसगुल्ले वाली आईडी है उसकी। तो वो क्या कहते हैं कि हम अहमदी हैं, ठीक है? तो अहमदी से मुराद वो खुद अपनी बता देते हैं कि हम कौन से अहमदी हैं, कि हम सही मुसलमान, के नबी सल्लल्लाहु का नाम मुबारक अहमदी है। तो हम सच्चे अहमदी, सही अहमदी हम हैं। मरज़ई ये तो कादियानी है। अच्छा, ये फिर भी गुंजाइश निकलती है इससे। फिर वो उनकी जाके ब्रॉड पे बात करते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, फिर हवाला जात मिर्जा कादियानी के देने पे उनको आसानी होती है। चलो फिर भी गुंजाइश मैं कहता हूँ निकलती है, लेकिन ये कह देना कि मैं मरज़ई हूँ, तो ये सीधा सीधा जो है ना, वो आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, सुनने वालों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। क्या वो जो सिद्धू जट है दूसरे है, क्या वो ये कहते हैं कि हम कादियानी हैं? और अभी ऊपर आके भी ह्यूमैनिटी भैया आपने कहा मैं मरज़ई हूँ। किसी के ये उस्मान भी नीचे मजदूरी कर रहा है, कमेंट मजदूरी करनी है इसने। देखते जाए ये करता क्या है। चलें कोई नहीं, छोड़, अब आपको बता दिया ना ये कौन है। अब वो ये जैसा भी कमेंट करे, जैसे भी बात करे, आपने बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं देनी। जी लब्बैक हो गया उस्मान भाई, लब्बैक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसने तो मुझे अपने जाल में फंसाया हुआ था, बदल अल्लाह पाक इसको हिदायत दी। आमीन। सादे मोहतरम, वो यूट्यूब पे तो अब मेरे ख्याल से उधर यूट्यूब पे चल रहा है प्रोग्राम। नहीं यार, आज चल रहा था ते मैं क्या आज छुट्टी कर ली है।
जी ठीक हो गया सर। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਔਰ ਆਮਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੌਜੂ ਬੜੇ ਹਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਦੱਸ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਪਵੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਈਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੋ ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਈਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ लित्र और कुछ भी नहीं जी ठीक हो गया इंशाल्लाह जी ठीक हो गया उस्ताद जी मुझे भी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आ जाओ लित्र खा जाओ। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।